कपिल वॉरियर्स बनाम नागेश युद्ध जो
Welcome back, and once again we have a timing here to just read the names of the players. The Kapil Warriors. The lineup for Kapil Warriors goes as follows: Tushar Kutikar, Durgesh Prabhu Gaonkar, Australian player; Amit Amshekar, Australian; Someshwar Adpaikar, Mahesh Rao, Goresh Naik, Jaganivas Patil, Saniket Palkar, Siddharth Lakshman, Ghanekar, Siddesh Verekar, and Vikrant Prabhu, the captain, with Viraj Lad, the extra man for team Kapil Warriors. That's a team lineup and nicely balanced. Kapil Warriors, a lot of talented players in that list. It will be a very interesting and very competitive tournament for sure, wherein 10 team owners with their team are participating in this Royals T20. That is Kapil Warriors, Nagesh Youth of Bandora, RN Panthers 77, Maharudra Rising Stars, McLaren Sports Club, Darsakal Stars, Metafun Charges, Union Sports Club. Warm welcome to Atul Naik sir. And Union Sports Club, Sathari Cricketers, and Borim Sports Club. That's a 10 team lineup which will be participating in this Royals T20 Championship 2022. As you can see, the ground like a garden, and the players like a flower in different colors decorated the ground beautifully. It just cannot be better than this when it comes to the Royals T20 Championship 2022. All credit goes to the very renowned player himself. True love for the game of cricket is Pritesh Naik, as well as his team, with Sajjan and others coming up as a team and putting their best effort what they can and bringing it every year better and bigger tournament, that is Royals T20 Championship. Season 6, and on this beautiful Panchayat ground of Madkai. And big thank you to the Madkai Panchayat for allotting this ground for the Royals T20. After last year it was at the Famagudi ground, and today again back in the Madkai Panchayat ground. So big thank you to Madkai Panchayat. As you can see, the players of Nagesh Youth of Bandura in their orange jerseys, and in yellow jerseys is Kapil Warriors to the right side of the ground. From the committee box to official umpires, Sanjay Naik from Savadem, and joining him is Prashant Gadekar from Aldona, Goa. In this matches, all the matches have been shown live on Goa Livecast. The team of Shiom and others are here to bringing you the good HD clarity and sound quality to their best what they can for this tournament. The first Goan YouTubers, that is Goa Livecast, will be covering the entire tournament. So all the best for them as well.
testing. And in the meantime, I have the list of Nagesh youth. The list goes as follows: Captain Sachin Krupaskar, Sapresh Mulvi, Bharat Arkas, Mayur Tilve, Kedar Naik, Syed Badi Outstation, Uddesh Ram, Jesh Parab, Prakash Palkar, Sachin Sawant, Swayam Bingi, Adesh Naik, and Ram. That's a team line of Nagesh youth of Bandura. For the teams, nice on this beautiful ground. Well, two official umpires, Sanjay Naik from Savadem, and joining him from Aldona is Prashant Gadekar. Scorer, official scorer is Sankalp. Veling, Royal T20 पहिली स्टार तो नाम से तर राहुल So, welcome to Royals T20 Season 6 Championship, that is 2022, and a warm welcome to social worker Dilip Davlikar, who is the chief guest of the inaugural function of Royals T20 Championship 2022. Joining him on the dais is Shailesh Panjikar, Punch member of Madkai Panchayat, ZP Damodar Naik of Priyal constituency, Atul Naik sir, the president of Bandura Youth Club, Sharan Katkar, physiotherapist, also joining the dais. A warm welcome to them. I would like to request Pritesh Naik to please give a token of love on behalf of Royals T20. Siddharth. First to the chief guest, Shri Dilip Davlikar, social worker. Put your hands together for Dilip sir, for his precious time. And others, now I would like to request Siddharth to give the flower to Damodar Naik, ZP of Priyal constituency. To Sharan Katkar, the physiotherapist. Also requesting official umpires to please take a seat on the dais. For his precious time as well, and also requesting Siddharth to give to Shailesh Panjika, who himself is a great player. Requesting Sankalp Prabhu to please kindly come. Okay, Punch member of Madkai Panchayat, and also extending his help and support for any tournament on this beautiful ground. And now for Atul Naik sir, who is the president of Bandura Youth Club and also the man behind Nagesh Youth of Bandura, social worker and also ex-joint secretary of Goa Cricket Association. And now for Sanjay Naik from Savadem, official umpire, has been here in this field since many years, and a professional umpire, GC qualified. Sanjay Naik sir from Savadem. Requesting Siddharth to give to Prashant Gadekar, who is one among the best umpires on the Goan soil from Aldona. Now requesting all the Prashant to please escort all the dignitaries on the ground for the introduction and toss ceremony.
test, mic testing. The teams please line up on the crease for the introduction, for the inaugural ceremony first. And then it will be the introduction, national anthem. Sachin. Please, please. Requesting Dilip sir to please come forward. Inaugural ceremony of T20. Social worker Dilip Dhalikar sir. Joining him is Shailesh Panjika, Panch member of Madga Panchayat, Damadanaik, ZP of Priyal constituency. Sharan, physiotherapist, and Atul Naik sir, the president of Bandara Youth Club, and also ex-joint secretary of Cricket Association, along with two officials. Inaugural ceremony. Two talented teams, NAGESHI of Bandura and KAPIL Warriors, in the yellow jersey. As is the ritual and the tradition of our Indians that before the start of any big event, we remember the Almighty God. Look at that sixth Royals T20 Championship 2020 will be flying up in the sky in a short while, marking the inaugural ceremony of the sixth season of Royals T20 Championship 2022. Pritesh Naik, the president of Veling, himself is a great player in T20. And look at the contribution of him every year, making sure the tournament becomes great success, better and bigger every year as it comes. Dilip Dhalikar sir, breaking of the coconut. Yes, applauses from everyone. This is the beautiful tradition of we Indians. Nageshi, entire team come here. This side. Oh yeah. I declare this tournament open. Put your hands together.
हे घे ते जा पेपरा टाइम तुझे येवपा ना Now the captains, please step forward for the toss. Andorra captain Sachin Gupaskar is there, and the captain of KAPIL Warriors, Vikrant Prabhu, is here. Vikrant is going to call. Here goes the coin from Dilip sir's hand. Else, he says. Heads it is Sachin, the toss is in your side, the inaugural match, and what is your take? We are fielding first. Fielding first, like to chase, and NAGESHI is good team to chase. Yeah, definitely. Happy how the balance is in the team. Yeah. All the best for you. Now, Vikrant, you've been asked to bat first. You are smiling. Good depth in the batting, and T20, hot favorite. Good score, at least 150, 160 is expected from your side. Yes, obviously. I believe been a lot many matches win. So we're looking to bat first, and it's toss to lose. Combination of lot of players, it will not be easy as a captain. Definitely, we have a team of 16 members, and it's easy to take out 11 out of 16, where everybody plays their role in the team. But it's part and parcel of the game. Have a good one, Vikrant. Yes, and that's the news. NAGESHI won the toss. They're bowling first. I would like to request the chief guest of inaugural ceremony in social worker, Dilip Daulikar, to please say few words. Hello, good morning all of you. It's हांगा रॉयल T20 चॅम्पियनशीप सुरू जाल्ली आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा इंडियन प्रिमियर लीग चालू जाल्या आनी एक गेम इतली सामकी हाजेर जाता गेम रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आनी राजस्थान रॉयल आशिल्ले अशे 144 रन आशिल्ले कांय न्ही आशिल्ले काडपाक पूण क्रिकेट इज द गेम ऑफ लक म्हणटा एक एकटो रन आवट जायत गेलो आनी म्हाका उमेद आशिल्ली आमचो गोंयचो प्लेयर सुयश प्रभुदेसाय 50 तरी मारतलो कारण फाटल्या गेमीत तो फेल जालो एकदां बरें मारिल्लें ताणें आनी आमची भुजां वयर सरपाक मान उंच जावपाक सुयशान एक 50 रन काडचे अशें दिसतालें पूण तें जायना म्हणून म्हणटा क्रिकेट इज द गेम ऑफ लक पूण तुमी सगळ्यांनी स्पोर्टिंगली ते खेळपाक जाय खेळटा आसतना मदीं मदीं केन्नाय अशी बाचाबाची जाता झगडी जाता पूण यू हॅव टू टेक इट स्पोर्टिंगली इतलेंच सांगता कित्याक म्हाकाय वचपाक जाय
Test, mic testing. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। So I'd like to ऐसे ही और thank भी वीडियोस के लिए चैनल को Dilip सब्सक्राइब Dholikar sir, करो और along बेल with आइकन को Shailesh दबाना बिल्कुल मत भूलो। Damodar Naik sir, Atul Naik, and ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को physiotherapist सब्सक्राइब for करो their और precious बेल time आइकन को दबाना बिल्कुल मत on this भूलो। occasion. In spite of their busy schedule, they are here on ऐसे ही time. और भी वीडियोस के लिए Big चैनल thank को you to सब्सक्राइब all the करो और dignitaries बेल and आइकन chief को guests. दबाना बिल्कुल मत भूलो। So yes, the toss ceremony, toss won by Nageshi Youth, and they ऐसे ही और said भी वीडियोस captain के लिए wants to चैनल को bowl सब्सक्राइब first करो with और their बेल team. आइकन को It दबाना means बिल्कुल मत Nageshi Youths want to chase in the very first inaugural match of the Royals ऐसे ही T20 और भी वीडियोस के लिए season चैनल को 6. All the best सब्सक्राइब once again for करो both the और बेल teams. आइकन को दबाना Is the बिल्कुल inaugural match between Nageshi of Bandora versus Kapil Warriors. Both the teams are ऐसे ही equally और भी balanced, a वीडियोस lot के of लिए talented चैनल players को in their सब्सक्राइब side. करो और It is a बेल match आइकन को दबाना worth बिल्कुल मत watching. And definitely it will be a cracker of a contest for ऐसे ही और sure. भी वीडियोस के लिए चैनल When को two सब्सक्राइब brilliant करो teams और are बेल आइकन coming को दबाना बिल्कुल मत face off to take on each other. भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी Yes, वीडियोस के लिए requesting, चैनल को the, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। Car ऐसे owners ही to और भी please park वीडियोस के लिए the चैनल car को on the सब्सक्राइब road करो or और बेल roadside. आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी Keshav वीडियोस Naik के लिए helping चैनल को still सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल to मत भूलो। officials. ऐसे Official ही और भी scorer वीडियोस के लिए Sankalp चैनल को Prabhu. सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब official करो scorer, और बेल आइकन को Sankalp दबाना Prabhu. बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को Yes, I would like to once again repeat the team list of NAGESHI of Bandora, who won the toss and they are on the ground. Soon they will be decorating the field. Sachin Kurpaskar, who is the skipper of the team. Sapresh Mulvi, Baradarkas outstation. Mayur Tilve, Kedar Naik, Syed Badi outstation. Uddesh Ramnathkar, Prajesh Parab, Krupesh Palkar, Sachin Sawant, Swayam Bingi, Nishchay Naik, Adesh Naik and Raja Kazri. So that's the lineup for Nageshi Youth of Bandora, and the lineup of Kapil Warriors goes as follows. Under the captainship of Vikrant Prabhu, it's Tushar Kutikar, Durgesh Prabhugaonkar, Amay Damshekar, Someshwar Adpaikar, Mahesh Rao, Gaurish Naik, Jagan Nivas Patil, Saniket Palkar, Siddharth Ghanekar, Siddesh Verikar, and Viraj Lad is the 12th man, that is the extra man of Kapil Warriors. Once again, wishing both the teams all the very best for the first inaugural match. The Royals T20 is back and the season 6 will just kickstart in a short while. Big thank you once again to Dilip Davlikar sir for his precious time. He is the chief guest of the inaugural ceremony of the 6th season of Royals T20. And joining him is Shailesh Panjika, who himself is a great player, a true lover for the game of cricket, who is the punch member of Madkai Panchayat. Along with him is Atul Jenaik, ex-joint secretary of Goa Cricket Association and the president of Bandora Youth Club. Damodar Naik, ZP Priyal constituency, and our doctor, physiotherapist, is also here for the inaugural ceremony. Warming up, and all are set to take on each other. Joint secretary of Goa Cricket Association, the former Anant Naik, the man who has a heart of gold and always extend his help and support for any sporting activity, especially in cricket. Anant Naik sir. Always happy to see him. Anant Naik, who was the director of corporate league twice for Goa Cricket Association. A renowned personality of Madkai, Anant Naik, is here along with other dignitaries. Sapresh Mulvi has been brought into the bowling attack as was expected. Inda of Goa. Wonderful and specialized zigzag, like how the cheetah runs. If you can watch his footings, it is that zigzag running from Sapresh Mulvi from the community box end. I would like to request Siddharth to please welcome Anant Naik sir with a flower. Put your hands together for a great personality, Anant Naik sir.
He's a former director of Goa Corporate League and the joint secretary of Goa Cricket Association. Has done a wonderful job when he was there in Goa Cricket Association. And the cricket was just going other levels. Such was the contribution from Anant Naik sir during his tenure at GCA. Tushar on the non-striker's end and Durgesh Prabhu Gaonkar on the striking position. And definitely Goa Cricket Association is doing a lot to promote the young talents of Goa. Are you ready? On the countdown of 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. Slightly way outside the off stump and a wide signal. Sapresh Mulvi into the bowling attack. The bowling proceedings to have started from the pavilion end. The very first ball is a wide signal way outside the off stump and a lot of width. Durgesh Prabhu Gaonkar on the striking position and non-striker's end is Tushar Kurtikar. Once again the ball is just drifting down. Once again a back-to-back wides here, not getting the line perfect initially. But once he gets the line, he is a wonderful bowler. Good with the line and length, good variation, good swing. And what is more devastating is that zigzag run-up from Sapresh Mulvi. Tries to just distract the batter. If the audience can have a look at his footings, it is absolutely like a cheetah. Oh, this time the ball is up in the gap. The ball might just race a bit to the boundary. And yes, it is beautifully timed. And the ball coming right out from the middle of the bat. Wonderful timing from Prabhu Gaonkar. That only shows that he's in a sublime form of batting. Perfectly timed the ball right on the stumps and good delivery was been executed in style in the deep extra cover position. Finds the fence. He gets off the mark with a boundary. The ball is up and it's huge. That will go all the way. And yes, it is. Right on the side screen. That's a big six from Durgesh Prabhu Gaonkar. The foundation has been shaken of Nagesh youth with a quick fire from Durgesh Prabhu Gaonkar. He's cutting loose. The very first ball that he faces beautifully driven. A glorious cover drive into the fence for a boundary and then nice and straight lofted shot coming right out of the middle once again. His timing so perfectly good. Durgesh Prabhu Gaonkar. Score is 12 quickly. Oh, take that! Much better, much bigger, it's huge, it's high, it's handsome, it's colossal, it's mighty, it's gigantic, it's right on the building for huge sixer.
Sabresh Mulvi having a tough time, the nightmare. He never must have thought the very first over and going bang bang Turkish Prabhu Gaonkar. He's making it look like T10 in the T20 format. Look at the ratio is just shooting up. The score has already gone up to 18 runs in just 3 deliveries. Sabresh has the ability to make a comeback. It is NAGESHI of Bandura. They got a good experience in T20s. Not a team to be taken lightly, NAGESHI of Bandura. Oh, the zigzag is definitely not working. Once again, the ball is gone. Yes, plentiful of bat on that for another biggie coming from the bat of Durgesh Prabhu Gaonkar into the deep square leg region this time. So what a batting from Durgesh. He's going every ball to the fence. 3 sixes. Take that, another one. Much better. Distance is absolutely 90 meters. This time, this is the and I think the next big name will be Durgesh Prabhu Gaonkar in the IPL. Definitely deserving the way he's batting in the IPL for sure. Score is 30 already. Take that, the ball is up and that time there is a failure. Will he cut it off? Hey, well, it looks like just a single to bring up the over. And what an entertaining over this was. Absolutely truly entertaining. 31 runs. And Sabresh Mulvi has never had a tough time since recent year. He's disappointed, dejected, but still the players of NAGESHI is boosting his morale. No problem. This all happens in the game of cricket. And game of cricket is all about uncertainty. We can also come back with a bang. But what a over. Absolutely 31 runs with 6 sixes, 1 boundary, 2 wides and 1 single to end the over number 1. The chief guest and all the other dignitaries are surprised and they're shocked to see such a wonderful cut-losing batting from Durgesh Prabhu Gaonkar. He's from Kankon. Coming from a long distance and taking the ball to the distance as well. What a flying start that has been provided by Durgesh Prabhu Gaonkar and setting a trend in the T20s as the competition is just getting tougher and tougher every tournament that comes their way. However, the ball has to bring in a stopover, especially to Durgesh Prabhu Gaonkar. If they go in this manner, definitely the score will be around 300, 350. Very quickly, it's the captain himself, Sachin Krupaskar from the far end, the spin attack. Good changeover. After that pacer, a quick spin attack.
that can probably break the momentum of especially Durgesh Prabhugaonkar, who has contributed with the help of with the help of 4 sixers and 1 boundary, with 2 wides and 1 single, score 31. Tushar Kutik is also surprised. I guess every ball that he was bowled to him was been timed beautifully, and there wasn't any shot that he mistimed it. That is the class and the grace of the player, Durgesh Prabhugaonkar. From the far end, slightly bit of a change the fielding as well. Beginning of the second over is Sachin Krupaskar. A lower full toss and driven once again in the gap, could be a couple of runs here. There is a fielder, will he cut it off? He does well. With the help of these 2, the score has gone up to 33 runs. Gentle drive from Durgesh Prabhugaonkar, showing the sensibility. Sensible batting. Not going every ball, but waiting for the right opportunity. And for Sapresh Mulvi, Durgesh Prabhugaonkar found all the balls to hit. And that too is such a great timing. I think over a span of 10 years' time, Sapresh Mulvi never bowled such an expensive over than this. That is 31 runs. Bringing much needed control from Sachin Krupaskar. This is how Nageshi youth of Bandura makes a comeback. They know it is not a game of 1 over, it is a game of 20 overs. What you get is 120 deliveries. The ball is up and there is a fielder. There is a fielder and he has taken a wonderful catch. And 31 runs contribution from Durgesh Prabhugaonkar, but Sachin Krupaskar makes the difference, picks up the very first, and that too the prize wicket of Durgesh Prabhugaonkar. Wanted to hit, but finds the fielder, and the fielder making no mistake in grabbing that opportunity. And what a sign of relief for Nagesh of Bandura. They have taken the wicket of Durgesh Prabhugaonkar. Amay Damshekar walks in at number 3, very sensible batter. And Amay has that ability to stay and play for a long time. Sachin Krupaskar once again from the far end picked up a wicket. A slight bit of adjustment once again. The gully fielder is being positioned. A lovely shot inside out, beautifully picked up by Amay Damshekar. The very first ball, bang, she goes into the covers for a boundary. Such a stylish batter that he is after the wicket of Durgesh Prabhugaonkar, who contributed 33 runs, and his individual score is 31 runs that he contributed in the very first over and the first delivery. Tushar on the non-strikers end, but Amay on the striking position. The new batsman at number 3, that is 1 down. Once again, beautifully done. That will race away to the boundary. Back-to-back boundaries from Amay Damshekar. Such a class act when it comes to batting. Normally what we see in any format of the game, that the batter, when he goes out to the crease, he tries to take some time.
just get the feel of the ball, how the ball is coming to the bat. That judgment is very important for the batter, but for Amit Damshekar, that is not necessary. He loves to play any shot that is playable. He don't hesitate to play those wonderful shots. And as what we see, back-to-back boundaries from Amit Damshekar. Played a lot of T20s for Warriors, especially Gumteshwar Warriors, a team coming from Savadem. This time, Bharat is playing for Nageshi, as he's always a regular member, wicket-keeper batsman for Nageshi Youth of Bandura. Quick one this time. There is a field in the deep sweeper cover who will cut it off. Just a single after those two consecutive boundaries. What a wonderful over. They picked up the prize wicket and now just trying to make a comeback. Nageshi Youth of Bandura, completion of 2 overs. And the score is 42 for 1. Udesh Ramnath, there is a change in the bowling from the commentary box. It's 42 after the completion of 2 overs with 2 boundaries in the last over. Of course, last over was very crucial. Nagesh Youth of Bandura picked up a wicket, and it's Udesh from the pavilion end. To begin the third over, score is 42 for 1. Batting first is KAPIL Warriors. Tushar on strike. Shot of length pulled this time and will get a boundary. All the batters are doing a fantastic job. They want to hit the boundary to get off the mark, and all the 3 batsmen has done that. Durgesh Prabhugaonkar opened his inning with a boundary in the covers. Then Amit Damshekar with the inside out in the covers as well. And now Tushar Kutikar in the deep square leg region with that little bit of inside edge of the bat and enough bat on that to carry the ball to the fence. Wonderful timed boundary, score quickly moving up to 46 runs with the help of this boundary. Udesh Ramnathkar is the bowling after Sapresh Mulve. And good change from the captain, Sachin Krupaskar. Such a smart captain. This time straight back to the captain in the square leg region. No chance of a run. Once again, a similar kind of a shot, but this time right straight to the captain. If the ball had to be in the gap, that would have been another boundary. Yes, because there's no backup fielder there in the deep square leg region or in the mid-wicket region or even in the long run region. As this is the power play overs, those 6 overs the power play. Oh, thick edge, thick outside edge. Good effort there from Bharat Arkas. But the distance was more. The ball races away the deep third mid region for another boundary from Tushar. I would say that was a lucky boundary. If it was a fine edge, that would have been a catch for sure. Because Bharat Arkas is such a wonderful wicket-keeper batsman. It's 50 up for KAPIL Warriors. 50 up with the boundary. Look at that, just 2 overs and 3 deliveries, and it's 50 up. Quick fire. Beauty, absolutely beauty. That has literally surprised the batsman. Tushar, wonderful delivery from Udesh. Look at the reaction. The body language says how close that ball was
to the off stump, or at least would have nicked the bat. That would have been a catch in such wonderful deliveries. He's capable of bowling. Damadonai, a big thank you for him for his help and support for the tournament and his precious time in this morning for coming up for the inaugural ceremony of Royals T20 Season 6. Just allowing the ball to go by past Amit Damshekar. He is such a sensible batter. Tushar, I beg your pardon. That Tushar, not necessarily every ball they have to go for at least single. But such a class act of batting. The depth is definitely deep in Kapil Warriors. As the player like Kapil Warrior himself, the team owner, he's just keeping himself away from the playing 11, making sure the team is nicely balanced in such a wonderful tournament of Royals T20 Season 6. Nicely worked, beautifully done. A bit of nudge on that from Tushar to pick up a single. A single here to sum up the over number 3. After the completion of 3 overs, it's 51-52 for the loss of 1. DJ. से मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस ओवर के बाद आगे का आंखों देखा हाल उनकी जुबानें हिंदी में करेंगे आपको अपडेट्स। 3 ओवर की समाप्ति, 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रॉयल्स T20 चैंपियनशिप सीजन 6 में आप सभी का स्वागत। सुनने वालों को नदीम अहमद की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सच अ वंडरफुल टूर्नामेंट वंस अगेन। प्रीतेश नायक इज बैक विद अ बैंग। कृपेश पालकर, द डेल स्टेन ऑफ गोवा फ्रॉम द फार एंड, एक बेहतरीन गेंदबाज दूर वाली छोर से चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। उनका सामना करेंगे तुषार कुटीकर जो कि स्ट्राइक पर मौजूद। पहली गेंद पर बिल्कुल बढ़िया शॉट, फिर से एक बार गेंद गैप में, कम से कम 2 रन मिल सकते हैं या फिर गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इसी बीच बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग के साथ केवल 2 रनों पर सीमित किया बल्लेबाजों को और बल्लेबाज इन 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 54 रनों पर। बिल्कुल केवल 2 दिसंबर 3 ओवरों में 50 रन पर पहुंच चुकी है टीम कपिल वॉरियर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से डेप्थ जो कि उनकी बल्लेबाजी में, जिस प्रकार से फ्लाइंग स्टार्ट दी थी दुर्गेश ने, केवल 1 ओवर में 31 रन बनाए थे। पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद हवा में, मगर फिर से एक बार गैप में। कोशिश रहेगी फील्डर की रोकने की और जब तक मयूर तिलवे रोककर गेंद को थ्रो करेंगे 2 रन फिर से एक बार जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। धीरे धीरे 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब तक 56 रनों पर। तो बिल्कुल गेंदबाजों ने निश्चित तौर पर एक अंकुश जरूर लगाया जिस प्रकार से पहले ओवर की शुरुआत हुई थी, जिसमें 4 लंबे छक्के के साथ एक बाउंड्री भी आई थी और 2 वाइड और 1 सिंगल के साथ स्कोर बना था 31 रन। बिल्कुल अब एक साझेदारी आप देख सकते हैं 1 विकेट गिरने के बाद इन दोनों के बीच। खेलने की कोशिश, इस बार प्री मेडिटेटेड शॉट जिसे कहते हैं, यानी कि ऑन द हाफ वॉली पर जोरदार शॉट लगाने का प्रयास तुषार की ओर से। कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद के साथ। कृपेश पालकर जो कि सवाई वेलिंग के एक बेहतरीन गेंदबाज जिन्हें डेल स्टेन के नाम से जाना जाता है पूरे गोवा में, इस प्रकार की उनकी सुंदर गेंदबाजी। हल्की सी बाहर गेंद ऑफ स्टंप के, प्लेबल डिलीवरी की गई अंपायर की ओर से। अगर अंपायरों की बात करूं तो बिल्कुल काफी अनुभवी संजय नायक सावरडेम से जो कि गेंदबाज की ओर, और स्क्वायर लेग में गोरे चिट्टे अल्डोना से प्रशांत गढ़ीकर, जिन्हें सभी अंपायर पाकलो कहकर पुकारते हैं।
संभल कर खेलने का प्रयास इस बार, बिल्कुल फिर से एक बार पटकी हुई गेंद आश्चर्यचकित करती हुई तुषार को समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार से खेले, जिस प्रकार से लेंथ पर सुंदर गेंदबाजी हो रही है। कृपेश पालकर के बिल्कुल सोचने पर मजबूर करती हुई बल्लेबाज तुषार को कि आगे खेले या फिर बैकफुट पर। इसी कश्मकश में गेंद निकल जा रही है डॉट के साथ। स्कोर अभी भी रुका हुआ 56, 1 विकेट के नुकसान पर। 31 रनों का योगदान दुर्गेश प्रभु गांवकर के बल्ले से मिलता हुआ टीम को, और उनका स्वागत बिल्कुल तालियों से किया गया। इस बार खेलने की कोशिश, मगर गली की दिशा में खिलाड़ी तैनात। सुंदर ओवर की समाप्ति, बिल्कुल केवल 2 रन दिए हैं इस ओवर में, 4 रन दिए हैं, माफी चाहूंगा। 4 ओवर की समाप्ति, 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल सिंह साहब की जुबानी, डीजे। हूं चंदन सिंह, आप सभी महान भावों का सच्चे हृदय से स्वागत, बंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको याद दिलाना चाहूंगा, चलिए मैच चालू करिए। बैट्समैन तैयार, इसी बीच बॉलर चले, राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया और शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से खेला और 1 रन यहां पे बहुत ही समझदारी के साथ चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ, तो बता रहे भैया अच्छा, ठीक। बैट्समैन तैयार, बॉलर चले, अंपायर को क्रॉस किया, इनकी गेंद और बहुत ही करारा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, हालांकि फील्डर मौजूद और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6ठा सीजन चलता हुआ यह उद्घाटन मैच यहां पे आज खेला जाता हुआ। नागेशी यूथ बनाम कपिल वॉरियर्स के बीच नागेशी ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रीतेश नाइक जी का, जिन्होंने हमें बॉलर चले, अपने ओवर की अगली गेंद और बहुत ही बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेला। जब तक फील्डर जाते गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो 1-1 रनों की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक कपिल वॉरियर्स के बल्लेबाजों द्वारा। सामने है बल्लेबाज, बॉलर चले और करारा शॉट, गेंद जा रही है, हालांकि फील्डर मौजूद और यहां पे कैच छूटता हुआ और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कुछ क्षणों के लिए गेंद हवा में थी, ऐसा लग रहा था कि एक मौका बन सकता है, और यहां पे एक कैच छूटता हुआ। पकड़ो कैच जीतो मैच, तो हालांकि यहां पे एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल 62 आइकन को 62 दबाना रन बिल्कुल मत भूलिए। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। अभी तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी बल्लेबाजों द्वारा। रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6ठा सीजन शुरू होता हुआ।
मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। धन्यवाद देना चाहूंगा प्रीतेश नाइक जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में शामिल होने का। वो कहते हैं ना कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और प्रीतेश नाइक जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमें ये मौका दिया इस रॉयल T20 चैंपियनशिप में हिंदी कमेंट्री करने का। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो समर्थक देर से आए हों उन्हें एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि नागेशी यूथ बनाम कपिल वॉरियर्स के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। नागेशी यूथ ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय। रॉयल T20 चैंपियनशिप मैच 20-20 ओवर का खेला जा रहा है। अभी तक बहुत ही बेहतरीन गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली है। इसी बीच बॉलर तैयार, बल्लेबाज भी तैयार। चले, अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी गेंद और फाइले के छत्र में खेला, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। किसी को कोई मौका नहीं, फील्डर दर्शक बनकर देखते ही रह गए और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, बैक टू बैक चौका यहां पे आता हुआ। अब दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल रिदम में बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जितना तारीफ करें उतना कम। मैच जब शुरू हुआ था तो पहले ही ओवर में क्या गजब की बल्लेबाजी दिखाया था बल्लेबाज दुर्गेश भाई ने पहले ही ओवर में क्या गजब के 4 गगनचुंबी छक्के लगा दिए थे। अब गेंद पहुंचाई जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6वां सीजन। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया था। पावर प्ले चलता हुआ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्किल के बाहर। बल्लेबाज को पूरा मौका रहता है कि आप सर्किल पार करें और गेंद को निकालने सीमा रेखा के बाहर 4 या 6 रनों के लिए। इसी बीच बल्लेबाज तैयार, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह क्रीच में डटे हुए हैं। और अंपायर का इशारा आता हुआ, बॉलर चले, राइट हैंड ओवर द विकेट। एक बार फिर से कट किया पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया, कोई रन नहीं। और इस तरह से ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 67 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कपिल वॉरियर्स। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर चले, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद, करारा शॉट, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और यहां पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। कपिल वॉरियर्स को लगने वाला दूसरा झटका।
दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और तुषार भाई आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। तो अभी अभी पहली ही गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज अब गए हैं नए बल्लेबाज तुषार भाई का स्थान लेने के लिए। समेश्वर बॉलर चले, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी गेंद बिल्कुल, और एक और यहां पे झटका लगता हुआ एलपीडब्ल्यू विकेट के सीधे सामने पाए गए और यहां पे एक और विकेट मिलता हुआ तो हैट्रिक पे हैं गेंदबाज। कुरपेश जिन्होंने खाता भी नहीं खोला और ये तीसरा झटका लगता हुआ कपिल वॉरियर्स को। अच्छा कुरपेश बॉलर है, कुरपेश भाई बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल बैक टू बैक यहां पे विकेट निकालते हुए हैट्रिक का चांस। अगर हैट्रिक बना पाते हैं तो इस टूर्नामेंट में, हालांकि सीजन 6 का पहला हैट्रिक होगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक समय आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब कपिल वॉरियर्स ओपनिंग दोनों बल्लेबाज गए थे तो गजब की बल्लेबाजी, उसके बाद बढ़िया वापसी गेंदबाजों के द्वारा नागेशी यूथ के गेंदबाजों के द्वारा बढ़िया सपोर्ट किया है फील्डर ने और लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट यहां पे निकालते हुए गेंदबाज। करूं? हाँ ठीक है, मैं करता हूं ना। हाँ क्या तो गेंदबाज हैट्रिक पे, कट करो आप। हेलो हेलो, कट करो भैया। फील्ड में परिवर्तन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गेंदबाज हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। एक सेकंड, कनेक्ट है ना, देखता हूं। बल्लेबाज तैयार, देखना है क्या हैट्रिक बचा पाते हैं। बॉलर चले सामने बल्लेबाज के लिए और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला तो निश्चित रूप से यहां पे हैट्रिक बचाते हुए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी, जितना तारीफ करें उतना कम, लाजवाब गेंदबाजी। और रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6ठा सीजन शुरू हो चुका है, ये उद्घाटन मैच चलता हुआ
बॉलर चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। पटकी हुई गेंद और घुमा दिया, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन चौका, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, जैसे ही बल्लेबाज ने देखा और दिशा दे दी, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर बिल्कुल गोली के रफ्तार से 4 रनों के लिए। तो इसी चौके के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला, स्कोर जा पहुंचा 70 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। खिलाड़ियों में कुछ मंत्रणा चलती हुई। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहां पे देखने को मिलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से बॉलर तैयार, बल्लेबाज तैयार। बॉलर चले सामने बल्लेबाज के लिए, पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से कट किया, गली के क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर जाते उठाते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। स्कोर जा पहुंचा 71 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। कपिल वॉरियर्स कांटे का मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच। जो समर्थक देर से आए हो, इसी बीच एक बार फिर से बॉलर चले हल्के हल्के कदमों के साथ, पटकी हुई गेंद और करारा शॉट, हालांकि फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे और गेंद निकल गई फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डाबर 54 प्रयास, बिल्कुल ताकत वाला शॉट और निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और शायद ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 75 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। ऐसे ही और भी कपिल वीडियोस के लिए वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। हेलो, एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। अब गेंदबाजी करेंगे डिंडा और सामने है बल्लेबाज जगनिवास। पहला ओवर काफी महंगा ओवर था। गेंदबाजी पवेलियन नेट से गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से। कप्तान ने भरोसा जताया। डिंडा चले, अच्छी गेंद और लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन वाइट। और इसी बीच जब तक, हालांकि विकेट कीपर गेंद को नहीं पकड़ पाया, जब तक गेंद आती थ्रो करते फील्ड होता, मौका था एक बाई और एक वाइट, तो यहां पे 2 रन मिलता हुआ। हमें नहीं पता, वो ऐसे ही लगा हुआ। तो एक बार फिर से, हालांकि शुरुआती जब बॉलिंग के लिए, इसी बीच एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया और फिर से उठा के मारना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बहुत ही बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, लेकिन बढ़िया वापसी। देर आए दुरुस्त आए। गेंदबाज तैयार, और फिर से ऑफ स्टंप, बिल्कुल अंडरलाइन,
बढ़िया गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी। सामने है धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज जो कि 30 रनों के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए पारी का शुरुआत करने के लिए आए थे। तो बिल्कुल डिंडा चले, पटकी हुई गेंद और कट किया। हालांकि जब तक पॉइंट के फील्डर गेंद को पकड़ते थ्रो करते, फिर से मौका था छोर बदलने का। तो बढ़िया चतुराई भरी बल्लेबाजी, संयम और समझदारी के बीच चलता हुआ ये क्रिकेट। बढ़िया गेंदबाजी डिंडा के द्वारा। इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी। परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज शप्रेश, थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, हल्के हाथों से खेला। जब तक फील्डर गेंद को पकड़ते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो धीरे धीरे स्कोर बोर्ड चलता हुआ 79। 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कपिल वॉरियर्स आइकन को दबाना बिल्कुल मत 83 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कपिल वॉरियर्स। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो 6 ओवर की वीडियोस के समाप्ति, लिए पावर चैनल प्ले को सब्सक्राइब समाप्त हो करो चुका है। और सॉरी, बेल 7 आइकन को ओवर, दबाना बिल्कुल मत भूलो। 7वां ओवर शुरू होता हुआ। अब ऐसे 5 और भी खिलाड़ी वीडियोस के लिए सर्किल चैनल के को बाहर। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। अब स्पिन आक्रमण ऐसे और गेंदबाजी भी के लिए वीडियोस आए के लिए हैं चैनल को सचिन। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना छोटे बिल्कुल कद के मत बल्लेबाज के लिए। चले, अच्छी गेंद कट किया। भूलो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हालांकि चैनल को सब्सक्राइब गेंद करो जा रही है बाउंड्री और लाइन की बेल तरफ। जब तक आइकन को गेंद को दबाना पकड़ते बिल्कुल थ्रो मत करते, फिर से मिस फील्ड और उस मिस फील्ड का भरपूर फायदा उठाते हुए Nicely done. Just looking for the very quick running between the wickets. Wonderful running. Such a class act when it comes to the running between the wickets. He's such a great batsman to watch. I personally feel in the Kapil Warriors name list, Mahesh Rao tops the name when it comes to batting. Of course, the second name is Amit Damshigar for sure. But Mahesh Rao is such a quality, pure quality, what we can see in this match. Nicely done, wristy work. Beautifully picked up in the middle, and the ball has gone to the fence. Just a class act and a lot of wristy work there. Slightly ball drifted down to the leg side and picked it up beautifully. He got all the shots in his kitty in such a wonderful batsman. Absolutely a pleasure to watch him batting in such a great form.
Well, can he pay the tribute to Martin Anthony with his 50 at least? Well, he'll be trying for that. Played with the gentle hands. He's always got that ability to play to the merit of the ball. The shot selection is so good. Picks up the length very early on and gets in a good position. Glance, flick, drives, late cuts, good drives. That's all what that we can see when it comes to the batting of Mahesh Rao. Just a single here to take the score up to 96 runs. Just 4 runs away from the 3-figure mark. Kapil Warriors. With that flying start from Durgesh Prabhugaonkar contributing 31 runs was just swashbuckling. Nicely glanced. The ball might just race away. Very quick outfield, and yes, it is. The ball will win the race. Nicely done by Jaggu Patil. Just a little bit of glance there, and the ball has gone with the pace of the ball. Just taken the pace off, and that's the end of 9 overs. It's 100 up for Kapil Warriors after 9 overs. And they are definitely keeping the ratio of 11 runs an over. So just taking himself off the ground, Sapresh Mulvi had a tough time. He was literally sitting on the ground after that first over. Well, it all happens in the game. Winning and losing, sometimes more runs, sometimes he's such a wonderful bowler for his team. NAGESHI of Bandura, that team relies on his ability of bowling. Sapresh Mulvi has many times, on many occasions, has made the team win with his brilliant bowling. Expensive, sometimes good bowling is part and parcel of the game. Winning and losing is also a part of the game, and what wins in the end is the cricket. Once again, a warm welcome to all the listeners on the YouTube through Goa Livecast. This is Nadeem Ahmed updating you. This is the very first inaugural match of Royals T20 Championship 2022. 9 hours gone by. It's once again Sachin Kurpaskar, the captain, under the instruction of Syed Badiuzzama, the big man. And a lot depends on Syed Badi when it comes to the batting of NAGESHI of Bandura. But for the moment, it's Mahesh Rao who's taking the responsibility and taking the lead of the batting proceedings of Kapil Warriors, alongside the little pocket dynamite Jaggu Patil on the non-strike end. Beginning of the 10th over, score is 100 for the loss of 4 wickets. Batting first, Kapil Warriors in the very first inaugural match of Royals T20 Championship. Captain Sachin Kurpaskar from the far end. Keep it a drive, a single, very comfortable. Is it a little bit of brisk walking? Look at always the eyes on the ball. Mahesh Rao, such a quality batsman. I'm in there in the field since almost 11 to 12 years in the commentary duties in all the tournaments, but I've seen little players like Mahesh Rao of pure quality. Waiting is the call, very quick call. Look at the calling very early on, giving time for Jaggu Patil to recover and get back to his crease. That is what the calling is also so good. And I've been seeing him after almost a year now, Mahesh Rao. The batting. On the back foot, but straight to Syed Badi, big man, who is capable of taking big shots. I will not be surprised if he bats and if he takes the ball right on the highway.
Straight down, but intentionally played lofted, but a good control on that. Not very far, not too short, right in the middle of the bowler and the deep long off fielder. Jagu Patil and Mahesh Rao forming once again a good partnership after the fall of 4 wickets in the 10th over. Singles, doubles, controlled aggression is just outstanding. Good footwork. This time the long on region finds the fielder. Additional single adding up to the tally to take the score to 103 runs. Inside out in the gap, the ball might race away to 2 runs at least. Yes. Good running. A slightly squarer, in fact, in the deep extra cover region that was being played by Jagu Patil with the perfect timing. Completion of 10 overs. It's 105 for 4. Change in the bowling. Syed Badi has been brought into the bowling proceedings to begin the 11th over from the pavilion end. And the score is 105 for the loss of 4 wickets. Durgesh contributing 31 runs, and then Amit Amshekar with 37 runs, Tushar with 6 runs, and Someshwar without scoring. That's the 4 fall of the wickets of Kapil Warriors. Beautifully played, a good length delivery bowled by Syed Badi. Syed Badi has a huge experience of playing not only in India but even overseas. He's played a lot of cricket in Dubai, Abu Dhabi. Sweep shot, beautifully picked up. Will be just a single because Krupesh Palkar is very, very good. In fact, excellent when it comes to the fielding. And what a brilliant catch that he was taken. Before that, one catch was dropped by the fielder. But Krupesh Palkar just setting the example of how to catch Australian style. Good drive from Jagu Patil. Plentiful of bat on that and a good running as well. A slight bit of a fumble will allow the batsmen to convert that single into 2 runs. And what a match this is turning out to be. Absolutely. What a recovery from Kapil Warriors after the fall of the 4 wickets. And that's the reason why even the captain Vikrant Prabhu said they have the depth in the batting. A lot of options for the captain. Wide signal, slightly. The ball drifted on. Maybe just trying to bowl that quicker one, Syed Badi. Nicely done. A bit of wristy work, but straight to the fielder. Slight fumble. There could be 2 here. No, they've settled down for single. Good recovery from the fielder as well. Setting a good example of control, aggression, which is necessary in the T20 format of the game. Not very aggressive, not too defensive. Playing as per the requirement, singles, twos, waiting for the right opportunity. Anything short of length, half volley. Oh, good work from the wicket keeper, but not good enough to convince the official umpire in the square leg. That was brilliant work from Bharat Arkas. Brothers Amar Arkas and Bharat Arkas is known as Bang Bang Brothers. Normally they played for Gomteshwar Warriors from Savardem. But now he's a regular pick and a regular team member of NAGESHI of Bandura as comes to the overstation player, Bharat Arkas. And now they have taken the change in the play as Syed Badi.
Just with the drive, brilliant over comes to an end. 11 overs gone by. 110 for 4. तो फिर से एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रॉयल्स T20 चैंपियनशिप का ये सीज़न छठा और आप देख रहे हैं इनॉग्रल मैच जो कि खेला जा रहा है नागेशी ऑफ बांदोरा, जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया सचिन कृपास्कर ने। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में बदलाव दूर वाली छोर से और गेंदबाज मयूर तिड़वे को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में, जो कि एक शानदार खिलाड़ी। हालांकि जब बल्लेबाजी की बात आती है नागेशी यूथ ऑफ बांदोरा की तो बिल्कुल एकमात्र बेहतरीन बल्लेबाज मयूर तिड़वे। तो अब गेंदबाजी के लिए उन्हें याद किया गया है, तो देखना होगा कि किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। 12वीं ओवर की शुरुआत के पहले हल्की सी वार्म अप करते हुए मयूर तिड़वे दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में, और स्ट्राइक पर है छोटे कद के यानी कि छोटा साइज बड़ा धमाका जग्गू पाटिल स्ट्राइक पर। ग्यारहवीं ओवर के बाद 12वीं ओवर की शुरुआत में मयूर तिड़वे को लाया गया है। मीडियम पेसर शायद गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने इनकी बल्लेबाजी देखी है न कि गेंदबाजी। पहले गेंद पर बड़ा शॉट लॉन्गर की ओर खेला गया, 1 रन के लिए जग्गू पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर को पहुंचाया नेल्सन 1-1-1। अशुभ माना जाता है क्रिकेट की जगत में जब कभी आता है ये फिगर, यानी कि नेल्सन। डेविड शेपर्ड नामक एक अंपायर थे जो एक पैर पे खड़े हो जाते थे जब आता था फिगर 1-1-1, जिन्हें नेल्सन फिगर कहा जाता है। अशुभ माना जाता है, मगर दोनों ही अंपायर में देख रहा हूं कि दोनों ही पैरों पे खड़े हैं, कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं, मगर बिल्कुल प्रशांत गडेकर तावीज उनके गले में अक्सर देखी जाती है। अपने गले की ओर देखते हुए प्रशांत गडेकर। वो इस बार बिल्कुल हल्की सी उछाल ने पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को। महेश राव, जिनसे काफ़ी उम्मीद है कि एक लंबी पारी खेलेंगे, लगभग कम से कम उनके बल्ले से 50 रन तो जरूर निकलेंगे आज, मुझे लगता हुआ। और अक्सर एक लंबी पारी खेलता है बल्लेबाज महेश राव। इसी बीच केवल दिशा दी डीप थर्मिन की ओर, केवल 1 रन के लिए हल्की सी फंबल मगर सुंदर फील्डिंग है। 1 ओवर हिंदी में कर रहा हूं, गुजारिश करूंगा सिंह साहब को कि 1 ओवर आप अंग्रेजी में कर लें। वाराणसी से मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इनका स्वागत। उत्तर प्रदेश चंदन सिंह, सिंह इज किंग। पटकी भी गेंद इस बार हल्के हाथों से फिर से एक बार दिशा हाना होता हुआ हल्का सा, मगर आखिरकार दौड़ पड़े हैं। ये हिचकिचाहट अक्सर इन बल्लेबाजों में नजर नहीं आती, मगर इस रनअप पे बिल्कुल नजर आई। जग्गू पाटिल दौड़ पड़ते, रुके, फिर से दौड़े। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हल्की सी बातचीत होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच, महेश राव और जग्गू पाटिल, बिल्कुल एक शानदार साझेदारी उनके बीच। बिल्कुल ब्लॉक होल में कलाएं के बदले मोड़ दिया है गेंद को स्क्वायर की दिशा में। कम से कम 2 रन की कोशिश रहेगी, मगर सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। रनों का दायित्व निश्चित तौर पर इन दोनों बल्लेबाजों पर रहेगा कि देखना होगा कि कितनी लंबी साझेदारी चलती है। जब कभी साझेदारियां होती हैं, न सिर्फ T20 की मैं बात करूंगा, ओडीआई या फिर टेस्ट में, तो बिल्कुल रन बनते हैं। इक्का दुक्का रन के साथ चौका, और कभी मौका मिला तो लंबा छक्का भी निकल जाता है बल्लेबाजों की ओर से। तो फिलहाल लंबे लंबे छक्कों के साथ एक सुंदर शुरुआत दी है दुर्गेश प्रभुगांवकर ने। पटकी गेंद इस बार दिशा दी डीप पॉइंट की ओर 1 रन के लिए। तालियों के साथ हर एक शॉट पर हिम्मत अफजाई करते हुए खिलाड़ी
कपिल वॉरियर्स के। 12 ओवरों की समाप्ति इस 1 रन के साथ, और 12 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 115, 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि एक शानदार साझेदारी छोटे मियाँ बड़े मियाँ के बीच, जो कि क्रीज पर बड़े मियाँ महेश राव, छोटे मियाँ छोटे कद के जग्गू पाटिल। फिर से एक बार पूरी शान और शौकत के साथ रॉयल्स T20 चैंपियनशिप का आगाज हो गया है, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रीतेश नाइक और उनकी टीम का कि मुझे अक्सर और हर टूर्नामेंट में मौका देते हैं। और कभी कभार तो यहाँ तक प्रीतेश नाइक की जुबानी आए कि वॉइस ऑफ रॉयल्स T20 नदीम अहमद, तो उस इज्जत के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रीतेश नाइक का। स्वयं एक और T20 की स्पेशलिस्ट, जो कि एक कंप्लीट ऑलराउंडर परफॉर्मर है। वेलिंग क्रिकेटर्स के लिए अक्सर खेलते हैं और उन्हीं की टीम है वेलिंग क्रिकेटर्स। तो फिलहाल 13 ओवर की शुरुआत लेकर फिर से एक बार लंबे ऊंचे कद के सैयद बदी जाने दिया गेंद को। देखिए आमना सामना जैसे ग्लेन मैकग्राथ और सचिन तेंदुलकर का, उसी तरह से सैयद बदी बनाम जग्गू पाटिल। इस बार हल्की सी अपील, मगर विकेट कीपर के बाद सैयद बदी ने हाथ उठाया। एक सुंदर निर्णय अंपायर प्रशांत गडेकर का। देखिए मुस्कुराहट, अगर फाइन एज होता तो दोनों ही उछल पड़ते। ऑन द फ्रंट खेलने की कोशिश, इस बार बिल्कुल क्विक वन से पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी, नपीतुल गेंदबाजी सैयद बदी की। बिल्कुल जिस प्रकार से मिश्रण करते हैं, वेरिएशन करते हैं, बिल्कुल लाजवाब। हालांकि कद अक्सर फायदेमंद सौदा साबित होते हैं गेंदबाजों के लिए, मगर स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं लाजवाब। जाने दिया इस बार, वहां पर हल्की सी फंबल के साथ गेंद निश्चित तौर पर जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल आखिरकार इस चौके की तलाश थी। जग्गू पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका, हल्की सी मिसफील्डिंग भी, उसी के कारण 4 रन का फायदा मिला बल्लेबाज जग्गू पाटिल को। इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 119 रनों पर। बैकफुट पर फिर से एक बार, इस बार मुश्किलों में आ सकते हैं महेश राव। अरे आउट, बिल्कुल रन आउट के साथ महेश राव वापस पवेलियन, यानी कि 5वां झटका लगता हुआ कपिल वॉरियर्स को। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी दौड़ने की, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। हालांकि जग्गू पाटिल की ओर से इशारा भी आया कि लौट जाओ, मगर जब तक लौटते देर हो चुकी थी, बदी ने काम पूरा किया। और इस प्रकार से एक शानदार बल्लेबाज और मेरा भी काफी फेवरेट बल्लेबाज महेश राव आउट होकर वापस पवेलियन। 119 पर 5 विकेटें गिरी हैं कपिल वॉरियर्स के 13वीं ओवर में। और जैसे विकेट गिरी है, फिर से एक बार जिम्मेदारी बढ़ेगी कंधों पर जग्गू पाटिल के। पहले ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाकर कद छोटा हो गया है, और फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी महेश राव के आउट होने के बाद। तो नागेश यूथ ऑफ बांदुरा फिर से एक बार एक अच्छी कमबैक करने की कोशिश। सैयद बदी जमा की बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी। और स्वागत करना चाहूंगा फिर से एक बार मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंदन सिंह, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से, उनका स्वागत। गौरेश गेंदबाजी के लिए जो कि 77 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा चंदन सिंह साहब से कि 4 ओवरों में 1 ओवर हिंदी कर रहा हूं, तो आप 1 ओवर अंग्रेजी कर लें। मड़कई के कुरन का यहां पर स्वागत। सैम कुरन, सैयद बदी जमा फिर से एक बार बिल्कुल एक शानदार गेंदबाजी के साथ हल्की सी अच्छी कमबैक कराते हुए अपनी टीम नागेश यूथ ऑफ बांदुरा के लिए। गोवा के सरजमीन पर एक बेहतरीन टीमों में से मानी जाती है नागेश यूथ ऑफ बांदुरा। सचिन कुपास्कर के नेतृत्व में बिल्कुल एक
अच्छी टीम। बिल्कुल स्लो वन इस बार फेंकी गई थी गेंद, संभल कर खेला जग्गू पाटिल ने और इस एक रन के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 120 रनों पर 13 ओवरों की समाप्ति। स्कोर हुआ 120, 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में तब्दीली और तब्दीली कमेंट्री बॉक्स में भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चंदन सिंह साहब को, जो कि आपको आंखों देखा हाल सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रॉयल T20 चैंपियनशिप छठा सीजन चलता हुआ और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री का, तो हमारे बड़े भाई जो कि अंग्रेजी कमेंटेटर हैं नदीम अहमद जी, आपका स्वागत बंदन और झुक के मैं आपको नमस्कार करता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत शुभकामनाएं देना चाहूँगा प्रीतेश नाइक जी को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से। गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर भाई आए हैं गेंदबाजी के लिए। फील्ड में तब्दीली यहाँ पे होता हुआ बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। और इसी बीच एक बार फिर से मारना कहीं और चाहते थे और गेंद बल्ले की अंदरूनी किनारा लेते हुए, जब तक वहां पे फील्डर आगे आते गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो बढ़िया मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज हैं गौरेश नाइक। अंपायर का इशारा आता हुआ बॉलर चले, पटकी हुई गेंद और कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। 13 ओवर की समाप्ति, स्कोर 120 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। इसी बीच अंपायर को क्रॉस किया और आगे आगे खेलना चाहते थे, आखिरी समय में अपने इरादे को बदला और हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बांध के रखा है यहां पे बॉलर ने बल्लेबाजों को। इसी बीच एक बार फिर से छोटे छोटे कदमों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद कट की आगे जा रही है फाइनल लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद सर्किल के अंदर, जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे। फिर से मौका था 1 रन लेने का, इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 121 रन, 122 रन, 122, 5 विकेट के नुकसान पर। बॉलर चले और एक बार फिर से उठा के मारना चाहते थे और मारा भी, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद, गेंद को नहीं रोक पाएंगे और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो जबरदस्त चौका जग्गू दादा के बल्ले से निकलता हुआ, हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद थे, मिसफील्ड और नतीजा सीमा रेखा के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। पावरफुल स्ट्रोक। इसी बीच एक बार फिर से खड़का दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे। फिर मौका था, दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग द बिटवीन विकेट, 2 रन और यहां पे जुड़ता हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर 128 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कपिल वेरियस भैया म्यूजिक को बजाओ, ज्यादा हम अपने फोन से बजाओ, डायरेक्ट बजाओ। 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर 128 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद।
एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन और सैयद बद्दी आए हैं और खड़का दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे। फिर से मौका था 1 रन लेने का, तो पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे अब सैयद बद्दी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इसी बीच एक बार फिर से हाथ खोलने का मौका और गेंद को घुमा दिया, गेंद गई सीमा रेखा की तरफ, फील्डर मौजूद, फिर से दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन पूरा किया, तो एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से और लाजवाब शॉट, करारा शॉट, शानदार स्टेट ड्राइव, हालांकि फील्डर मौजूद, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग का नजारा यहां पे देखने को मिलता हुआ। हालांकि जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते मौका था 2 रन लेने का, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और उतनी ही सुंदर फील्डिंग क्षेत्र रक्षण यहां पे करते हुए मयूर भाई बद्दी चले, पटकी हुई गेंद, हालांकि बिल्कुल अंडरलाइन, बढ़िया गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी बद्दी के द्वारा। इसी बीच एक बार फिर से और कट किया, दूसरी स्लिप पे, हालांकि फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का, तो बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिलता हुआ और उतनी ही सुंदर गेंदबाजी। छोटे छोटे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया और हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। तो पंद्रह ओवर की समाप्ति, स्कोर 133 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। हम यहां से नहीं बजा सकते, सॉरी सॉरी सॉरी। पंद्रह ओवर की समाप्ति, स्कोर 133 रन, 133, 5 विकेट के नुकसान पे रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6वां सीजन शुरू हो चुका है। पहला मुकाबला नागेशी यूथ बनाम कपिल वॉरियर्स के बीच चलता हुआ। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर भाई आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामने है बल्लेबाज गौरेश। मयूर भाई चले गौरेश भाई के लिए, 60 पिच, पटकी हुई गेंद और करारा शॉट, निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, बल्लेबाज के द्वारा हाथ खोलने का मौका और पावरफुल स्ट्रोक। गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। अब फील्डरों के द्वारा पहुंचाई जा रही है गेंद गेंदबाज के हाथ में। बहुत ही जबरदस्त और उम्दा बल्लेबाजी। इसी बीच एक बार फिर से, हालांकि गेंद को घुमा दिया, फील्डर मौजूद हैं फाइन लेग के क्षेत्र में, सर्किल के अंदर 1 ही रन मिलेगा और बल्लेबाज 1 ही रन से संतुष्ट। तो बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी, जैसी गेंद वैसी नसीहत। रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6वां सीजन चलता हुआ। इसी बीच और फिर से पटकी
हुई गेंद और आप स्टंप अंडरलाइन। बल्लेबाज ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी। एक बार फिर से ओहो, कट करना चाहते थे, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। तू डाल डाल तो मैं पात पात। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही बिल्कुल जबरदस्त यहां पे देखने को मिलती हुई। जब मौका मिलता है तो बल्लेबाज नहीं चूकते और गेंदबाजी में काफी परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, कट किया पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि फील्डर मौजूद, उनके पहुंच से थोड़ी सी दूर गेंद गई थी कप्तान सचिन जी के पास। हालांकि पूरा भरपूर डाइव लगाते हुए गेंद को कैच पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनके गिरफ्त से पहुंच से थोड़ी सी दूर। तो बढ़िया फील्डिंग का नजारा खुद कप्तान सचिन के द्वारा। जब कप्तान ऐसी फील्डिंग करता हो तो निश्चित रूप से एक मनोबल जो होता है टीम का बहुत ऊपर जाता है। इसी बीच फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन, बॉलर चले। फिर से पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे और अब की बार आप स्टंप के बाहर, और हमारे अंपायर महोदय हमको अवगत कराते हुए अत्यधिक तरन यहां पे जुड़ता हुआ आप स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर के द्वारा दिशाहीन गेंद करार देते हुए। इसी बीच एक बार फिर से छोटे छोटे कदमों के साथ और 60 पिच पटकी हुई गेंद, हालांकि घुमाना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी और बाउंड्री लाइन से जब तक फील्डर सर्किल के पास से पकड़ते, थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का, और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति, स्कोर 141 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कपिल वॉरियर्स तो रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6वां सीजन चलता हुआ। बहुत ही सुंदर मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। पवेलियन से गेंदबाजी करेंगे बद्दी, सामने है बल्लेबाज गौरेश। गौरेश भाई तैयार, फील्ड में कुछ परिवर्तन, बद्दी भाई चले, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला। जब तक विकेट कीपर स्वयं गेंद को पकड़ते तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के बीच चहलकदमी करते हुए यहां पे 1 रन और अपनी टीम के लिए जोड़ते हुए। बद्दी जो कि पवेलियन से गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। इसी बीच एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला, हालांकि पॉइंट के क्षेत्र में जब तक फील्डर गेंद को पकड़ते, थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। इसी बीच एक बार फिर से उठा के मारना चाहते थे और क्लीन बोल्ड हो गए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, पूरी तरीके से गेंद को बीट हुए और नतीजा क्लीन बोल्ड। तो 6ठा झटका लगता हुआ और गौरेश क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटते हुए।
12 रनों के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी आउट होकर अब पवेलियन लौटते हुए और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ भाई जा रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ, हालांकि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन। तो बहुत ही बड़ा विकेट यहां पे बद्दी को मिलता हुआ। अभी तक बहुत ही सुंदर गेंदबाजी बद्दी जी के द्वारा, बिल्कुल सटीक लाइन पे। बद्दी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उड़ते हुए उनके पंख बोलते हैं जबाने में। इसी बीच और बढ़िया गेंद, रहते हैं वहीं हमेशा खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। तो निश्चित रूप से अपने हुनर का भरपूर, इसी बीच और बढ़िया गेंद घूम के आई, हालांकि विकेट कीपर खुद गेंद को समझ नहीं पाए और निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो ये बाई के रूप में मिलता हुआ चौका, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और बेहतरीन स्विंग, बल्लेबाज को नहीं बल्कि विकेट कीपर को भी छकाती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बद्दी जिनकी सफलता ने शोर मचा दी, इसी बीच एक बार फिर से और अच्छी गेंद फिर से कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 17 ओवर की समाप्ति, स्कोर 147, 147 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट खोलने के बाद कपिल वरियश। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी बद्दी भाई के द्वारा, क्या गजब की गेंदबाजी, और एक महत्वपूर्ण विकेट भी निकाला था उन्होंने क्लीन बोल्ड के रूप में। सैयद बद्दी 4 ओवर 21 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम के लिए, हालांकि उनका कोटा पूरा हो चुका है। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर भाई आए हैं और सामने है बल्लेबाज जग्गू। इसी बीच एक बार फिर से करारा शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे, फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो बढ़िया गेंदबाजी मयूर भाई के द्वारा और कलाइयों का उपयोग करते हुए सुंदर तरीके से खेला था जग्गू भाई ने, जब तक गेंद फील्ड होता मौका था 1 रन लेने का। अब है स्ट्राइक पे सिद्धार्थ, फील्ड में परिवर्तन, मयूर भाई और जबरदस्त शॉट, हालांकि लॉन्ग ऑन, जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो बढ़िया बल्लेबाजी, कोई डॉट बॉल नहीं, हर गेंद पे रन निकलता हुआ, और जैसे ही कुछ गड़बड़ गेंद आती है तो बल्लेबाज बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। तो बढ़िया बल्लेबाजी,
जग्गू तैयार और शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में है और फील्डर मौजूद, एक बार फिर से यहां पे कैच छूटता हुआ, तो बद्दी भाई जग्गू भाई को एक और यहां पे जीवन दान मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 150 रन, तीसरा 150 रन, 150 का आंकड़ा यहां पे पार कर चुकी है कपिल वॉरियर्स। इसी बीच एक बार फिर से मयूर भाई चले, पटकी हुई गेंद, लाजवाब शॉट, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं और बढ़िया फील्डिंग, जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते फिर से मौका था 2 रन लेने का। बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पर केदार भाई के द्वारा, काफी लंबी दौड़ और आखिरी तक निगाहें गेंद पे और रोका, तो निश्चित रूप से यहां पे 2 महत्वपूर्ण रन बचाते हुए। इसी बीच मयूर भाई चले और फिर से कट किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, हालांकि जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे मौका फिर से था 1 रन लेने का, थर्ड मैन मौजूद। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, बिल्कुल समझबूझ के साथ, जैसी गेंद वैसी नसीहत और उतनी ही सुंदर गेंदबाजी मयूर भाई के द्वारा। तो रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6ठा सीजन चलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से बल्लेबाज जग्गू तैयार, मयूर भाई चले, पटकी हुई गेंद, हालांकि आप स्टंप अंडरलाइन और ओवर की समाप्ति। तो 18 ओवर की समाप्ति, स्कोर 153 रन, 6 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। और हम बुलाना चाहेंगे अपने बड़े भाई नदीम अहमद जी को, जो कि आगे का आंखों देखा हाल आपको अंग्रेजी में सुनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कपिल वॉरियर्स के बीच, बल्लेबाजों द्वारा सुंदर मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच। आगे का आंखों देखा हाल आपको हमारे बड़े भाई सुनाएंगे। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद चंदन। (153 for 6) after the completion of 18 overs, beginning of the 19th over. Once again, a warm welcome to all the listeners on the YouTube, especially Azim Bhai. He just called me in watching the match. A warm welcome. Assalamu alaikum. Oh, lovely shot, good drive, but straight to the fielder. Beautifully driven, but straight back to the fielder. Just a single. Siddharth, tall. Siddharth Ghanekar, very tall like Syed Badi. Unmesh Uddesh Ramnathkar. Half volley, a little bit of helicopter shot from Jaggu Patil. He's been there since quite some time, and what a fabulous inning he's been playing. He's been so consistently playing every ball, singles, twos, get going, which is required in the T20 format of the game. Some batters who can just stay on the crease on the one side, and that is exactly what Jaggu Patil is doing after the fall of many wickets. So far, 6 wickets down. Kapil Warriors, in the meantime, premeditated shot from Siddharth Ghanekar. This is the 19th over which is in progress, and it's time now for both the batsmen to just swing hard, swing big, but at the same time, swing with a good timing, which is important. Oh, lovely shot, good sound as well, the soothing sound. Gives the message that's nicely been timed. A slight bit of a fumble there in the deep long off region has given the advantage to the batters to pick up 2 runs to take the score to 157 runs. He's a big man, and definitely he will be looking for some big shots as Jaggu Patil is playing
sensible. Giving himself a bit of a room there and played once again straight back to the long off region. This time they have to settle down with just a single to take the score to 158 runs. Wonderful bowling from Syed Badi, who bowled his bowling quota of 4 overs and gave 21 runs and picked up 1 wicket. That is the bowling figure of Syed Badiuzzama. Oh, good hit. Hard hit, but straight to the fielder. Now it's going to speed up. Just a single. Wonderful from Zapresh Mulvi. Look at the pick up and throw. No fumbling, no coming late on the ball. Not allowing the batsman to convert that single into 2. Just a single to take the score to 159 after the completion of 19 overs for the loss of 6 wickets. Kapil Warriors batting first in the first inaugural match of Royals T20 Championship 2022. Correction, it's Royal T20 and not Royals. Royal means grand, prestigious. And definitely Pritesh Naik's thinking is not less than Royal. Is such a great thinker and comes up with a wonderful tournament every year. One among the most prestigious tournaments. In the meantime, a good drive, just picked up a single and the score has gone up to 160 runs. In fact, Syed Badiuzzama has given 17 runs and 4 runs in the form of byes. So a good control on the bowling in the 4 overs, not easy when the team is going through the bad phase. And wonderful Dale Steins. In the 19th over, last over, confusion there from our scorer. Good drive. Oh, wonderfully done. Wonderfully done. A hand to the ball, not sure, not appealing. Pesh Palkar. Maybe the ball has hit straight back to the stumps. Jaggu Patil, as there is a saying in English, luck favors the brave, and he's the bravest batsman. What an inning, what a temperament. Calm, cool, composed, plays a long inning. He's a quality batsman, Jaggu Patil. Lovely shot, picked up beautifully. That should run away. That should run down to the fence. Yes, it is. Right out from the middle of the bat and stand and deliver. From Jaggu Patil, bang, she goes in the deep mid-wicket region, and the score with the help of this boundary has gone up to 175. Wonderful striking. He knows exactly when to change the gears of his batting, and definitely is on the top gear now. And this is the 20th over. He will take some chances, and he will make some chances fancy as well. Look at that, Pritesh Naik is getting all the required things to keep us going strong with a lot of energy. Lofted shot, the ball is up and there is a fielder this time. Will he catch that? Oh no, this is the second catch which is going down and has allowed the Jaggu Patil to convert that single into 2. Wonderful running. What a masterclass batting performance from Jaggu Patil. The little size pocket dynamite. Chota size, bada dhamaka. He's on 48, just 2 runs away from what could be swashbuckling 50. Jaggu Patil, just 2 runs away from his 50 runs. That is half century. Oh, this time it's a 50 up for Jaggu Patil. In fact, 52 with his beautiful shot to the fence in the last delivery. He's more than happy. And so is his team, excited and applauses, smiles. And score with the help of this boundary has gone up to
171 and 172 will be the target to achieve for Nageshi Youth of Bandur. So I welcome in the meantime one of the most renowned player of Goa Police, Vinod Wilson. A warm welcome to him, and also Subrat Gaonkar. So 172 is the target for Nagesh Youth of Bandur to achieve. Let us see, we'll wait for and watch with the help of some good batters, which Nagesh Youth of Bandur has got some classic Kedar Naik, Mayur Tilve, some big hitters, Bharat Arkas, bang bang, and Syed Badiu Zama, who hits the ball like a plastic ball. Can they achieve the target? In the meantime, the umpire has called it's over and time.
Welcome back. 172 is the target to achieve for NAGESHI of Bandora. As expected, the openers will be the captain himself, Sachin Kurpaskar, and joining him will be a good hitter, Bharat Arkas. Is a team of Kapil Warriors takes on the ground. Once again, wishing both the teams all the very best for the first inaugural match of Royal T20 Championship 2022. Brought to you by Veling Cricketers. What a great team lineup when it comes to batting, as we saw Durgesh Prabhugaonkar giving a flying start to the team and getting 31 runs in the very first over. After that, good runs contribution from Tushar Kutikar as well. Amit Damchekar played sensible. Someshwar Arpaikar could not bat today and could not contribute with runs, but Mahesh Rao once again showed his skills in the classic act of his Gaurish Naik. And then comes Jaggu Patil, I beg your pardon, who played a swashbuckling inning, not out 52 runs, was just some class act into the batting of Kapil Warriors. Siddharth Ghanekar also gave a good support to the team to take the team's total to 171, and 172 is the target to achieve in 120 deliveries for NAGESHI of Bandura. Once again, a warm welcome to each and everyone, to all the listeners who are joining us to watch the second half of the first inaugural match. It's Siddharth Ghanekar, the tall man who has been trusted with the bowling opportunity. Oh, lovely shot from Bharat Arkas. I think on the footstep from Durgesh Prabhugaonkar. And he's also giving a flying start. Well, once again, a cracking beauty from Bharat Arkas, going bang, bang, 2 balls, 2 boundaries. This was the scene right in the very first over of NAGESHI of Bandura as well. Of course, Sabresh Mulvi started with 2 wides and then boundary followed by 4 huge sixes. But Bari has started with 2 balls, 2 boundaries. What a tit for tat reply from NAGESHI of Bandura to Kapil Warriors. This match is definitely going to be so interesting. The very first match, and what a tournament that has kick-started. Drive this time straight to the field in the square leg region. A chance of run, but didn't find the gap. Played straight to the fielder.
Mahesh Rao, such a wonderful wicket-keeper batsman. Siddharth Naik with a trophy, dreaming that one day I will win this trophy and show my papa I can play cricket too. Lovely shot, good pull, but once again excellent fielding. Very quick movement there from Sanjay Naik, official umpire from Savardham, as the ball was heading straight to him. Shortly, Pritesh Naik will be providing them hand protection, so they can bring that right in front of the ball to avoid injuries. But since Prashant Gadekar himself is a cricket player, he don't require that. Nicely done, straight to the fielder this time. Bharat Arkas played twice to him, but this time upish, but straight a simpler catch. And look at the fielder has put that ball in his pocket. It is as simple catch as that. So the first breakthrough here for Kapil Warriors. And Siddharth Ghanikar provides the wicket of one of the most ruthless striker of the ball, Bharat Arkas. So Nagesh Youth of Bandura with 2 balls to boundaries and then a wicket. Very handy for Kapil Warriors. Kedar Naik, the Gautam Gambhir of Nagesh Youth of Bandura, left-hand batting sensation. I'm quite well versed with the players of Nagesh Youth of Bandura as I'm closely associated with them. Kedar Naik, let me inform the spectators that he's a class act. He has got the ability to stay on the crease and play sensible. Singles, twos is his batting. A partnership will be very handy here for Nagesh. Watchfully played the full fits of the bat. Waiting is the call coming from the captain. After the quick fall of the very first wicket in the very first over, what a wonderful over from Siddharth Ghanikar. Completion of 1 over, score is 8 for the loss of 1 wicket. So completion of 1 over, score is 8 for the loss of 1 wicket, and the captain himself from the far end, it's Vikrant Prabhu, into the bowling proceedings. Will be bowling to Sachin Krupaskar. It means it's captain to captain. But the captain with a big responsibility on their shoulder to make their team win. Of course, it's a league tournament, but every win matters, as they will win 2 points with every win in these T20 league matches. Vikrant Prabhu from the far end. Score is 8 for the loss of 1 wicket, chasing a target of 172 to win.
calm, cool, collective, composed, full of confidence. Sachin Krupaskar has a big role to play in this match. If he survives for a long time, at the rate of 8.6 runs every over they need in every single over. Of course, a good start here with 8 runs. But what is slightly disappointing is for Nageshi that they have lost Bharat Arkas, who could have made the target much on the crease. Nicely put away. Will be a challenging here for the fielder. Yes, the ball is raced away to the fence. Ball has raced away to the fence. As I told, this could be a little bit of challenging here to stop that ball. Nicely been directed and beautifully been guided by Sachin Krupaskar with a cross bat and right in the gap. A boundary to take the score to 12 runs. And the boundary is coming a very first delivery of Vikrant Prabhu, the captain of Kapil Warriors. Slightly giving himself a bit of a roll on the back foot. Just wanted to once again drive in the similar manner, but this time a very quick delivery from Vikrant Prabhu. Trying to make a comeback in this over. Captain to captain, and the score is 12 for 1. Sliced it beautifully, but this time straight to the fielder. No fumbling, a clean pickup and throw, adding a single to the total of Nagesh Youth from the bat of the captain. Left hand, right hand combination always helps the batting side and works as an advantage. So they will have to make the most of that. Nagesh of Bandura as a partnership is required here, and the partnership should last for a long time as they are chasing a big target that is 172 considered in T20 format of the game. Anything beyond 150 will be a big target. It's 172 with the swashbuckling inning, and what a contribution from the short-heighted but immensely talented Jaggu Patil, contributing 52 unbeaten. Watchfully played with the full face of the bat, and look at the technique, the basics, and he's got that temperament to stay for a long time. He doesn't go with the emotions. He knows his responsibility, and the team rely on his ability. He's Mr. Reliable. Good drive, set back to the ball. Captain could be a boundary, a beautiful, a class act. Absolutely a glorious drive, and the ball coming right out from the middle. So Kedar Naik is a left-hander, but this shot reminds me of Sachin Tendulkar. Just a front push, and the ball races away with a brilliant timing. And that is exactly what we saw with this drive, which was fantastically timed, a pure timing coming from Kedar Naik. He was once a captain of Goa University. He has sliced it, and once again ball might race away to the deep third man position, finds the fielder there. In the 6th over the power play, what is an advantage here for the batters is they can make the most, except those 2 positions where the fielder has been kept in the deep. Completion of 2 overs is 18 for 1. Once again, a quick reminder, this is the Royals T20, and the first inaugural match is being played between Nagesh of Bandra, who won the toss, and the captain said they would like to chase first. And they're chasing now, 172 after the completion of 2 overs. It's 18 runs on the board. For the loss of 1 wicket of Bharat Arkas, who was a wicket-keeper batsman. A slight bit of a movement you can see as Mahesh Rao, the wicket-keeper, is adjusting the field to the bowling of Siddharth Ghanekar once again on the bowling proceedings. Slightly giving himself a bit of a room and angling the ball, tilting the bat to get that gap, and once again waiting
call from the captain. A bit of width there, and yes, wide signaled. Stretching his arms like Shah Rukh Khan. Prashant Gadekar signals wide. Once again, the ball in the leg side this time, not getting the line perfect. Siddharth Ghanekar. Going for the drive. Have you imagined what it would have been like to face a devastating Shoaib Akhtar when he bowled over 100 miles per hour? Or when Bradley bowls a full length delivery at 160 kilometers an hour. Just imagine the pace and the line and the length. They are the world's fastest bowlers. Once again carried forward. There is a appeal for caught behind. But umpire seems to be not interested. Very beautiful bowling this is. He's got that line perfect, and on the two occasions he has beaten Kedar Naik. Though he was slightly struggling the third over, Siddharth Ghanekar with wide coming up in the offside and the wide coming up in the leg side, and followed by these two beautiful deliveries to slightly surprising Kedar. He's carrying forward. I was just talking about the fastest bowlers. And the fast bowling has always captured the imagination of thousands of cricketers. And the bowlers including the likes of Sean Tate and Mitchell Johnson. Also has created history. Every ball is an appeal here. This time very confident appeal from Mahesh Rao. Literally running with excitement. And Kedar Naik is having a word with Mahesh Rao. Slight bit of a comedy of errors there, and every ball appealing, maybe trying to just distract Kedar Naik. That could be one trick, just to keep him thinking. Or maybe slide a form of sledging. Watchfully played. Yes, is a call from Kedar. No, is a call from Sachin Krupaskar. Wonderful bowling. This is from Siddharth Ghanekar. 3 dot balls after those 2 wides. Once again, a warm welcome. My very good friend and a proprietor of Mithai Ghar at Bandora is Uday Tilve sir. Uday Tilve sir is here and always supporting the Nagesh youth of Bandora. Warm welcome to them. Good looking drive in the covers. Could be a couple of runs, or maybe the ball might just race it to the boundary. No, well done by the fielder this time. Not taking eyes off the ball. Good pick up and throw, but 2 runs. Very handy for Kedar Naik to sum up the over number 3. After the completion of 3 overs. 22 for the loss of 1 wicket. I was just talking about the fastest bowlers and at number 5 comes Mitchell Stark. The fastest delivery is 160.4 kilometers an hour. One of the fast and the best bowlers in the world, and Stark has some sensational and consistent career in the field of cricket. And he holds the record of the second fastest delivery in the history of red ball cricket against New Zealand. When he bowled to the Ross Taylor, batting on 137
and he bowled a beautiful 160.4 kilometers an hour. That's the fifth, the fastest. So I'm just going to upgrade the spectators with the 5 fastest bowlers of the world. And then number 4 is Jeff Thompson. However, beginning of the 4th over. Vikrant Prabhu with the slice, cut this time, straight to the fielder. This time the ball has gone down. It is not only the fielders of NAGESHI who drop catches. Even what we have seen now is Kapil Warriors fielders also drop catches. Catches wins the matches, drop catches gives the confidence to the batsman to play more of good shots and play a long inning. Well, what a lucky survival here for Sachin Kurpaskar. Almost had a second wicket. Vikrant Prabhu. It's the first wicket has come handy to Siddharth Ghanekar of Bharat Arkas, caught in the square leg region. Nicely done. Waiting is the call. Not taking any chances when it comes to the running between the wicket. And I was just talking about Jeff Thompson, who bowled 160.6. The second fastest Australian is known to produce fast bowlers, and Jeff Thompson was a classic act and one of the renowned fast bowlers. Okay, bit of just a nudge set back to the bowler Vikrant Prabhu, bowling right on the line, keeping those areas in mind, the good areas. He's got little chance for the batsman to make some room and play. A perfect line is being kept by Vikrant Prabhu in the 4th over. Also bit of deflection, not sure. We'll have to wait for the umpire signal. The ball has gone in the deep fine leg region. Leg by boundary. There was a dive from Mahesh Rao. The ball was too quick for him to stop or collect. Some bonus runs here. Smiles on the faces of NAGESHI supporters and the players, because every boundary will add to some confidence to the batsman. It's a long chase for NAGESHI, but when there's a good partnership, no target is impossible. Good drive on the front. Waiting is the call. That would have been a run. He's super cautious, Sachin Kurpaskar. He doesn't want to lose his wicket, neither want to make Kedar Naik out. But in the meantime, that was definite single. But he says, I will cover it up. No problem. Well bowled. A fantastic over from Vikrant Prabhu to sum up the over number 4. After the completion of 4 overs, it's 23 for 1. 27, I beg your pardon. 27 for 1. Change in the commentary. Chandan Singh is here for the further updates of this beautiful and one of its kind, and what a clash of titans. धन्यवाद एक बार फिर से मैं अपने बड़े भाई नदीम अहमद जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और जैसा कि आपको याद दिलाना चाहूँगा, नागेशी यूथ बनाम कपिल वॉरियर के बीच ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ। पहले कपिल वॉरियर ने टॉस जीत बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171 रन, जीतने के लिए 172 रनों की ज़रूरत। नागेशी यूथ बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है अभी 27 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज भरत, जिन्होंने शानदार 2 चौके लगाए थे। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे सनिकेत। सामने है बल्लेबाज सचिन। रनों की जो गति है उसे थोड़ा तेज करना होगा। इसी बीच
बॉलर चले सचिन के लिए और करारा शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जब तक गेंद को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, मौका था 2 रन लेने का, तो इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 29 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ जीतने के लिए 172 रनों की जरूरत। रन गति, पावर प्ले चलता हुआ इसी बीच बॉलर ने दौड़ा चालू किया, बढ़िया गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ। तो जलाओ दिए को रहे ध्यान, इतना अंधेरा तले पर कहीं डूब न जाए, तो ध्यान रखना होगा। जो रनों की गति है, रन रेट है रिक्वायर्ड पर ओवर, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। इसी बीच एक बार फिर से बॉलर चले लंबे लंबे कदमों के साथ, लगता है हमारी आवाज बल्लेबाज सचिन के कानों तक पहुंची और खड़का दिया। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल स्ट्रोक, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसे ही स्ट्रोक की जरूरत अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो हर मैच को जीतना होगा। बहुत ही सुंदर क्लासिकल बल्लेबाजी सचिन के द्वारा, और बॉलर के साथ कप्तान कुछ बातचीत करते हुए, समझाते हुए, गेंदबाज का हौसला अफजाई करते हुए। इसी बीच एक बार फिर से लंबे लंबे कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया और जबरदस्त शॉट, गेंद हवा में और गगनचुंबी छक्का लगता हुआ। खेल वही पर खिलाड़ी पुराना है, तलवार वही पर धार पुरानी है। तो ये है सचिन, पिछली गेंद पर जबरदस्त चौका। अब धीरे धीरे अपने बाजुओं को खोलते हुए और एक गगनचुंबी छक्का यहां पे देखने को मिलता हुआ। गेंद निकल गई स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, आला किस्म की बल्लेबाजी, जितना तारीफ करें उतनी कम। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। धीरे धीरे यहां पे गियर को चेंज करते हुए सचिन, उन्हें पता है इसी बीच बॉलर चले, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद और एक बार फिर से खड़का दिया। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 6 खिलाड़ी बिल्कुल जाल की तरह बूझ के खड़े थे, लेकिन सभी खिलाड़ियों को चकमा देती हुई, 6 खिलाड़ियों, आप साइड में 6 खिलाड़ी तैनात, लेकिन चकमा देती हुई गेंद फिर से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी बीच एक बार फिर से, हालांकि शॉट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगी और वहीं पे बाकी काम विकेट कीपर ने खुद पूरा किया और ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 43 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ बहुत ही जबरदस्त मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। काफी दूर दूर से समर्थक इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। आप सभी का सच्चे हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन।
रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6वां सीजन शुरू हो चुका है और एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। स्ट्राइक पे हैं केदार और गेंदबाजी करेंगे दुर्गेश भाई। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आप स्टंप के बाहर छकाती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो काफी लंबा रन अप और बढ़िया गेंदबाजी दुर्गेश भाई के द्वारा। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज केदार। दुर्गेश चले, पटकी हुई गेंद, जगह बनाया और शॉट खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद हैं। जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे। फिर से मौका था एक रन लेने का और दोनों ही बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए एक रन यहां पे पूरा करते हुए। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर फील्डरों को। अब फील्ड में परिवर्तन, बहुत ही सुंदर मुकाबला। सामने है सचिन, कमाल की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अब गेंदबाज दुर्गेश तैयार। दुर्गेश चले सचिन भाई के लिए और खड़का दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 या 4 और हमारे अंपायर महोदय हमको अवगत कराते हुए गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार फिर से कट करना चाहते थे और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो इसी तर्ज पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सचिन। इसी बीच शॉर्ट पिच, पटकी हुई गेंद, कट किया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते, फिर से मौका था 2 रन लेने का। इसी 2 रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा 52 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ एक बार फिर से 60 पिच, पटकी हुई गेंद, हालांकि मारना कहीं और चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद वहीं लुढ़क कर बाकी का काम खुद गेंदबाज ने पूरा किया और ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 52 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ समाप्ति, पावर प्ले समाप्त, स्कोर 52 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ
गेंदबाजी में परिवर्तन, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं अमेर, सही है ना, अम्मे ना, अम्मे, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज केदार। फील्ड में परिवर्तन, बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ। बॉलर चले, एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, और यहां पे वाइट का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर महोदय द्वारा। तो एक और यहां पे अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, इसी एक अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 53 रन। बॉलर चले, एक बार फिर से अच्छी गेंद और दिशा दिया थर्ड मैन की तरफ। हालांकि फील्डर बाउंड्री लाइन से जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, मौका था चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, और इसी एक रन की मदद से स्कोर 54 रन। तो बढ़िया गेंदबाजी और उतनी ही सुंदर बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 5 खिलाड़ी सर्किल के बाहर। बहुत ही सुंदर मौसम, हल्की हल्की हवा भी चलती हुई। इसी बीच एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और करारा शॉट सचिन के द्वारा। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से मौका था एक रन लेने का। तो एक एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और दाहिने और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। तो थोड़ी सी फील्डरों को भी मशक्कत करनी यहां पे पड़ रही है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। इसी बीच एक बार फिर से जगह बना के खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद पैर पे टकराई, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर सचिन ने मना किया। हालांकि ओवर थ्रो, रन लेने का कोई मौका नहीं, दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। एक समय ऐसा था कि केदार रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर सचिन जी ने मना किया। दे रहा है, दुरुस्त है, और सचिन 31 रनों के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए इसी बीच एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद कट किया, हालांकि फील्डर मौजूद, पॉइंट के क्षेत्र में कोई रन नहीं। तो बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एक जाल की तरह बूंद के रखे हैं गेंदबाज, और सटीक गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन पे गेंदबाजी बॉलर के द्वारा। अब की बार फिर से शॉर्ट पिच और बाउंस, पहला बाउंसर। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी, चतुर और चालाक खिलाड़ी हैं, और अपने चतुराई का भरपूर फायदा उठाते हुए। इसी बीच बॉलर चले, पटकी हुई गेंद, और एक बार फिर से खड़का दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को पकड़ते थ्रो करते, फिर से मौका था एक रन लेने का, और ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 56 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ। 7 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है। जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 172 रनों की जरूरत। धीमी शुरुआत, लेकिन ठोस शुरुआत। नागेशी यूथ को एक झटका लग चुका है, जो कि बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे भरत, जिन्होंने शानदार 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए, और कैच आउट होकर फिर पवेलियन आना पड़ा।
तो एक ही झटका लगा हुआ है, 9 विकेट शेष। और एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलिंग करेंगे गेंदबाज सिद्धू, अच्छा सिद्धेश। कप्तान कुछ समझाते हुए, और स्ट्राइक पे हैं केदार। केदार तैयार, और सिद्धेश की ये गेंद घुमा दिया, कलाइयों का उपयोग, और जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर आते गेंद को उठाते, थ्रो करते। फिर से मौका था एक रन लेने का। इसी एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब सामने है स्ट्राइक पे सचिन, जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और यहां पे इनके बल्ले से देखने को मिलता हुआ सिद्धेश चले। फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन, फिफ्टी 59 रन एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ धीरे धीरे इसी बीच, और एक बार फिर से, और यहां पे कॉर्नर बॉल का चांस हो सकता था, लेकिन यहां पे कैच छूटता हुआ और बल्लेबाज को जीवनदान मिलता हुआ, और ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 60 रन एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। और अब हम बुलाना चाहेंगे अपने बड़े भाई नदीम अहमद जी को आगे का। With first and second delivery straight to the fence, and after that, two dot balls, and the fifth delivery that he played straight to the fielder, who was positioned in the short square leg just besides the official umpire, and picked up a brilliant catch. And that is how the first wicket down of Nagesh Youth. Look at what one good partnership can do to the match. Is this partnership can pose danger to the team, Kapil Warriors. The ball is up and in the gap, but finds the field in the deep. That will be just one, with that outstanding shot played inside out by Kedar Naik. And when it comes to that particular stroke, which has been played inside out, the Indian batsmen are considered to be the pioneers, the masters of playing that shot. Ajinkya Rahane, Gautam Gambhir, Virendra Sehwag, Sachin Tendulkar, Suresh Raina play such a wonderful inside out with a good footwork. Masterclass. The ball is up and will fall just short of the fielder who has been deployed in the deep third main region. Maybe the heart was in the mouth for some time of Sachin Kurpaskar, in spite of the fact that a wonderful partnership has prospered for a long time, and they've been taking the score beyond 60. But sometimes the ball, whenever it's up in the air with a mistiming, that sets the shivers down the spine of the best of the batsmen. And Sachin Kurpaskar just having a good look at that. Oh, well bowled right on the middle stump, but nicely been played. He's always good with that defensive strokes, Kedar Naik. Just spoken about the temperament, calm, cool, composed and relaxed frame of mind. That is exactly what is the batting style of Kedar Naik, and that's the reason why he's earned that name. Gautam Gambhir, who plays a long inning, and that too sensibly.
Warm welcome to Mohsin Tehsildar, who was initially organizing good tournaments. A good hit straight down the ground. Should be enough bat on that, and yes it is. Races out to the fence in between, long off and long on. Beautifully picked up shot from the captain and straight to the fence. Look at the height of official umpire, and the player is just standing beside Bade Mian, Chote Mian. Inside edge, straight to Siddharth Ghanekar. Wonderful piece of work. Good throw, good backup as well. What a good cricket from Kapil Warriors. That marks the end of 9 overs. 69 for 1. Over. So this match definitely heading towards a very interesting end. Is what a great partnership by right-hander, left-hander, right-hander, the captain himself with a big responsibility in Kedar Naik, Mr. Reliable of Nageshi, contributing with some valuable runs. To begin the 10th over, it's from the far end. Sidhu Velikar, oh nicely done, beautifully done by Kedar Naik. Nobody moved and the ball raced out of the fence, and a boundary again, the very first delivery. And I've been watching Sidhu Velikar since a couple of big time now, almost 12-13 years. He's such a wonderful bowler since then. And the quality is same as what I used to see him during 2007-2008. I'm talking about that era when he used to play for the Veling team under the captainship of Siddesh Prabhugaonkar. Is Devanand has been called as evergreen hero, and Siddesh Velikar will be definitely called as evergreen player on the Goan soil. He's just getting better and bigger every year passes by. Wonderful bowler. Flight one this time, straight up and out of the park. That is good hit from Sachin Kurpaskar. A slightly half volley and played beautifully for that biggie. So those flight of ones and half volleys should be avoided for Sachin Kurpaskar. It's a good message. No half volleys, no flight of ones. Well, the ball is up. It could be a catch here. Oh dear me. Can you believe that? The captain Vikrant Prabhu. It was such a simple catch. As Sidhu Velikar brought his much experience, he had deceived Sachin Kurpaskar. What a reply from Sidhu Velikar. And Sachin on 45 in dropped. Very quick one. Look at the variation of Sidhu Velikar. Every ball is a different ball. And when it comes to the variation, he's the boss of that. He's the grandmaster.
Look at the beautiful variation in the length. He's got such a good control on the grip of the ball. He knows exactly which delivery to bowl to stop the runs and get wickets. Will toss this time straight back to the bowler and slightly uppish though. Will be a single. As Sachin Kripaskar moves to 46 runs, his individual score, and that sum up the over as well, is still showing the sign of disappointment. Sidhu Velikar, that happens in the game of cricket. His score is 71 after the completion of 10 overs. So 10 has gone by, going at the rate of 8. Score is 81 for the loss of just 1 wicket. Ahmed Dhamshekar once again on the bowling mark. Shot of length. Oh, look at the sound. Oh, well fielded. Just one-handed pickup. After that, good control. Went for the catch, and then the ball falling short of the fielder in the sweeper cover. Brilliant pick up and throw. That was once again beautifully timed by the captain Sachin Kripaskar, and he moves to 47. His individual score, just 3 runs away from what could be his swashbuckling inning, the captain's inning, which was much needed for Nageshi. Oh, should be wide, and yes, comes the signal. Whenever the bowler tries to put that extra bit of a pace, it is then when he misses the line. It is a siren for the lunch break. What a good side is KAPIL Warriors. Lower full toss. The ball has gone past the fielder. There is a backup fielder to stop that. Just a single additional. 84 runs with the help of this single. ₹100 partnership between these two is good enough to steal the victory. Oh, good hit this time. That will go all the way in. Yes, it will. That's a 6. Stand and deliver kind of a shot. 50 up. Thank you, DJ. Bringing his 50 with style, Sachin Kripaskar. Good looking drive, long on region. With Tushar is being deployed. He moves on 54, Sachin Kripaskar. And this has happened on many occasions when the team needs his contribution, Nageshi. Then Sachin Kripaskar rises up to the occasion and plays a big inning. A painful leg before the ball would have missed the leg stump. Very professionalism shown by both the professional umpires, Sanjay Naik and Prashant Gadekar. And Prashant Gadekar is always a very hot favorite when it comes to Sakli Municipal Ground. He and Santosh Govekar always been seen doing umpiring at that particular ground. And that ground has one speciality, one tree right in the middle of the ground. Thick edge. Could be one. Just one, yes.
And that only shows that Saklikar are preserving the nature, not cutting the trees. Completion of 11. 92 for 1. थैंक यू 12 मिनट की शुरुआत और स्कोर हुआ है 92 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल पिछली ओवर में हमने देखा कि एक आसान सा मौका जो कि जाता रहा, फिर से एक बार सिद्धू वेरेकर को लागा है गेंदबाजी के क्रम में दूर वाली छोर से और सामना करेंगे स्वयं कप्तान। फुलटस गेंद पर एक करारा शॉट, बिल्कुल दर्शनीय शॉट, मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इट्स अ सिक्सर। इस बार स्लैश कर दिया है वहां पर खिलाड़ी तैनात। 62 पर अपनी निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन कृपास्कर, बिल्कुल शानदार पारी उनके बल्ले से। हालांकि 45 रनों पर एक मौका था जो कि जाता रहा, मगर उस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाते हुए और अपने आप को अब संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सचिन कृपास्कर। बिल्कुल कप्तानी भरी साझेदारी और केदार नाइक को लेकर एक लंबी साझेदारी बनाते हुए हल्के से ड्राइवर सीट की ओर बढ़ती हुई टीम नागेश यूथ बांदोरा की। जैसे मैंने पहले कहा था कि नागेश यूथ बांदोरा की टीम को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बैकफुट पर बिल्कुल कट कर दिया है। हल्की सी फंबल मौका देगी बल्लेबाजों को कि 1 रन का इजाफा करें। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन पूरे होते हुए नागेश यूथ बांदोरा के। बिल्कुल एक खुशी की लहर दौड़ती हुई नागेश यूथ के खीमे में और सभी चेहरे मुस्कुराते हुए। एक बार सुंदर गेंद के साथ सिद्धू वेरेकर, एक बड़ा नाम, काफी अनुभव। अनुभव पर एक शेर अर्ज करना गौर फरमाइएगा। तेज गति से गेंद इस बार बैकफुट पर खेला गया कवच की दिशा में। अनुभव की भट्टी में तप कर जो निकलते हैं, अनुभव की भट्टी में तप कर जो निकलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। तो बिल्कुल एक तपा हुआ और एक बेहतरीन सिक्का, यानी कि सिद्धू वेरेकर गेंदबाजी के क्रम में दूर वाली छोर से। फ्लैटर गेंद, बिल्कुल फिर से एक बार जोरदार अपील लेग बिफोर विकेट की। ओवर की समाप्ति इसी बीच इस अपील के साथ कोई रन का मौका नहीं। 12 ओवरों की समाप्ति 101, 1 विकेट के नुकसान पर। तो एर्नाकुलम एक्सप्रेस को मैं कहना चाहूंगा खुदा हाफिज विनोद विल्सन, जो कि गोवा पुलिस के एक बेहतरीन खिलाड़ी, केरला से गोवा, गोवा से केरला, एर्नाकुलम एक्सप्रेस
के नाम से मशहूर विनोद विल्सन। तो 12 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 101। गेंदबाजी क्रम में गेंदबाज दुर्गेश प्रभु गांवकर को, जिन्होंने 31 रन का योगदान दिया था, पहले ही ओवर में तोड़ फोड़ की बल्लेबाजी की थी। तो देखना होगा कि गेंदबाजी के क्रम में क्या कमाल कर दिखाते हैं। चंदन जी माफी चाहूंगा, आपकी हिंदी बोल रहा हूं, आप अंग्रेजी बोल लो। तो 13 ओवर की शुरुआत, स्कोर हुआ 101। एक विकेट के नुकसान पर बिल्कुल बेहतरीन, लाजवाब, तारीफ के काबिल पार्टनरशिप। बड़ा शॉट, फिर से एक बार हाथ खोल दिया, इस बार गेंद मैदान के बाहर। पहली गेंद पर करारा शॉट, इस पे बैक टाइम। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की थी दुर्गेश ने भी, और वही याद दिलाते हुए सचिन कृपास्कर। तो बिल्कुल कमाल की टक्कर रहेगी दुर्गेश बनाम सचिन कृपास्कर। गेंद हवा में, फिर से एक बार कैच का मौका, आसान सा रहेगा। और दुर्गेश प्रभु गांवकर ने बिल्कुल स्लो वन के साथ एक लाजवाब गेंदबाजी की और गेंद के साथ एक बड़ा विकेट, यानी कि सचिन कृपास्कर को आउट करने में आखिरकार कामयाबी मिलती हुई टीम कपिल वॉरियर्स को। कुल 69 रनों की लाजवाब शानदार पारी खेली है सचिन कृपास्कर ने। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया, जैसे कारगिल के युद्ध में जीत कर लौटे हैं हमारे जवान, उस प्रकार का स्वागत बिल्कुल काबिल तारीफ। एक सुंदर गेंद, जिसे कहते हैं चेंज ऑफ पेस इंग्लिश में, हिंदी में गति परिवर्तन, कन्नड़ा में गति बदलावने, मलयालम में वेग देड़ु मातम, तमिल में वेग मातम, तेलुगु में वेग योक्क मार्पु, मराठी में गति बदल और उर्दू में रफ्तार की तब्दीली, अगर गुजराती में कहेंगे गतिमान फेरफार। इस प्रकार की सुंदर चेंज ऑफ पेस की गई थी और उस गेंद पर बिल्कुल समझ नहीं पाए और आउट के साथ एक शानदार पारी का अंत हुआ, जो कि सचिन कृपास्कर की बल्लेबाजी के साथ 69 रन 69 रन का योगदान बिल्कुल लाजवाब। फिलहाल मैदान पर उतरे हैं चौथे नंबर पर मयूर तिलवे, जिन्हें अजिंक्य रहाणे के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नागेशी युद्ध की अगर बात करें तो सभी खिलाड़ी जो कि एक स्टार। तो फिलहाल नागेशी के विराट कोहली, शुभम देसाई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाफ अली पर बिल्कुल दिशा दी और पहली गेंद पर बिल्कुल 2 रन के साथ अपना खाता खोला मयूर तिलवे ने। 2 रन के साथ अपना खाता खोला और 2 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया धीरे से 109 रनों पर। हालांकि ये 13वीं ओवर की जो कि जारी है प्रगति पर और स्कोर हुआ है 109, 2 विकेट के नुकसान पे। तो बिल्कुल अब जबकि सचिन कृपास्कर आउट हो चुके हैं, अब केदार नाइक को लेनी होगी जिम्मेदारी और साथ निभाना होगा मयूर तिलवे को केदार नाइक का। तो इसी प्रकार से साझेदारी होती है। तो देखना होगा कि क्या गेंदबाज भारी पड़ेंगे बल्लेबाजों पर। इसी बीच फिर से एक बार कलाइयों के साथ खेल दिया है, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 2 रन की कोशिश थी मगर आखिरकार 1 रन पर रुकने को कहा। केदार नाइक का कॉल था कि वेटिंग, और केवल 1 रन पर सीमित हो गए हैं। सुंदर फील्डिंग के साथ कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझते हुए बल्लेबाज, और बिल्कुल एक सुंदर सोच उनकी। इसी प्रकार की सोच मैंने देखी सचिन कृपास्कर, जैसे ही केदार नाइक आए थे तो संभल कर, जहां पर 1 रन मिल सकता था तो भी
उस रन पर नहीं दौड़े, क्योंकि जानते थे कि जोखिम उठाना इस मोड़ पर खतरनाक साबित हो सकता है। तो बिल्कुल इस प्रकार की सुंदर सोच के साथ सभी बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए नागेशी यूथ बांदोरा के स्कोर 110। साइड बदलकर इस बार बाएं हाथ के खिलाड़ी को गेंदबाजी करते हुए दुर्गेश प्रभुगांवकर इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 1-1-1, यानी कि नेल्सन पर पहुंचता हुआ, जो कि क्रिकेट की जगत में अशुभ माना जाता है, अनलकी। और फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि एक अंपायर हुआ करते थे डेविड शेपर्ड, जो एक पैर पे खड़े हो जाते थे जब स्कोर होता 1-1-1, दैट इज नेल्सन जिसे कहा जाता है। तो दोनों ही अंपायर दोनों कदमों पर संभल कर बिल्कुल हल्के हाथों से 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा 112। तो देखना होगा कि पहली जीत किस टीम को मिलती है। तो फिलहाल 13 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 112, 2 विकेट के नुकसान पर प्रशांत गडेकर साहब ने कहा ओवर। चंदन सिंह, धन्यवाद हमारे बड़े भाई नदीम अहमद जी। तेरह ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवर अभी आने शेष। नागेशी यूथ धीरे धीरे विजय लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हुई। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। बॉलर चले, फुल टॉस, उतना ही करारा शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे। फिर से मौका था 1 रन लेने का। अंत भला तो सब भला, धीरे धीरे विजय लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हुई नागेशी यूथ की टीम। बॉलर चले, केदार के लिए प्लेस किया हल्के हाथों से, जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर आते गेंद को पकड़ते थ्रो करते। फिर से मौका था 1 रन लेने का। स्कोर बोर्ड चलता हुआ, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी सचिन जी के द्वारा देखने को मिली थी। इसी बीच एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला, जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर आते थ्रो करते। हालांकि दूसरा रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक करने मना किया। क्रीज में सुरक्षित, 1 ही रन मिलेगा। एक बार फिर से करारा शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट केदार के बल्ले से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, फ्लैट छक्का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मेहंदी रंग लाती है। इसी बीच फिर से बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेल के यहां पे
एक रन चुरा लिया, बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। बॉलर चले और जगह बना के खेला, हालांकि फील्डर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन से, फिर एक ही रन मिलेगा। हालांकि मिस फील्ड हुआ, रन लेना चाहते थे लेकिन एक ही रन मिलेगा और ओवर की समाप्ति। तो 123 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ 14 ओवर की समाप्ति के बाद 36 गेंदों में, घटाओ कितना चाहिए, 36 गेंदों में कितना रन चाहिए आप देखो ना, अभी 123 हुआ, 36 गेंदों में कितना चाहिए, 49। अच्छा, हाँ बता। 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर 123 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ 36 गेंदों में जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। संयम भरी बल्लेबाजी, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिलता हुआ नागेशी यूथ के द्वारा। इसी बीच एक बार फिर से करारा शॉट, पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में लहू की एक भी बूंद बाकी है भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद हैं तब तक कोई दबाव महसूस नहीं करते हुए और बढ़िया खबर लेते हुए गेंदबाज दुर्गेश जी का। इसी बीच एक बार फिर से और हल्के हाथों से खेला पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक फील्डर गेंद को उठाते थ्रो करते मौका था 1 रन, और यहां पे मिस फील्ड, कोई दिलचस्पी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट। बहुत ही तेज थ्रो, हालांकि वहां पे पॉइंट के क्षेत्र से फेंका गया था, डायरेक्ट हिट होता तो फिर मामला कुछ और। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। अब हैं सामने बल्लेबाज केदार, सूझबूझ के साथ अपनी नैया को बीच मझधार से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए। इसी बीच एक बार फिर से दुर्गेश की गेंद और जबरदस्त शॉट, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद, जब तक पकड़ते थ्रो करते, फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो बढ़िया बल्लेबाजी, जैसी गेंद वैसी नसीहत, रोमांच भरा मुकाबला चलता हुआ, कभी गेंद भारी तो कभी बल्ला भारी। देखना है गेंद और बल्ले के। इसी बीच और बढ़िया गेंद कट किया पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, स्कोर अब भी रुका हुआ। दुर्गेश बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी बॉलर के द्वारा। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ रॉयल T20 चैंपियनशिप के 6ठे सीजन का।
इसी बीच एक बार फिर से बता रहे हैं भैया, और फिर से कट किया पॉइंट के क्षेत्र में, अब की बार ओहो, हालांकि एक रन, बढ़िया थ्रो, डायरेक्ट अगर विकेट पे होता तो कुछ और होता, लेकिन फिर भी बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में। और ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 132। स्कोर 132 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। 16वां ओवर प्रगत पर, बल्लेबाज हैं मयूर भाई, और गेंदबाजी में परिवर्तन है? बॉलिंग के लिए आए हैं सिद्धेश। फील्ड में परिवर्तन, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। बॉलर चले छोटे छोटे कदमों के साथ, एक बार फिर से जबरदस्त शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते फिर से मौका था 2 रन लेने का, तो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा वहां खड़े फील्डर के द्वारा। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 134 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद नागेशी यूथ। सिद्धेश चले और दिलेश कुक, लाजवाब, और निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहले इस शॉट को ज्यादा खेला करते थे, जिसे दिलेश कुक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में बढ़िया सुंदर तरीके से खेला इस शॉट को, और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पिछली गेंद पर इसी बीच, और फिर से कलाइयों का उपयोग, हल्के हाथों से खेला, जब तक खुद गेंदबाज जाते गेंद को उठाते, फिर से मौका था छोर बदलने का। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 139 रन, 139। सिद्धेश चले और हल्के हाथों से खेला, वहीं पे गेंद को दबा दिया और 1 रन यहां पे चुरा लिया बल्लेबाज ने। स्कोर जा पहुंचा 142, 142 रन। सुंदर मुकाबला चलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से, और सुंदर शॉट,
गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। भरपूर कलाइयों का उपयोग और यहां पे एक महत्वपूर्ण चौका आता हुआ। इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 146 रन। हाँ, अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे बड़े भाई नदीम अहमद जी सुनाएंगे। चौबीस गेंदें 26 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। तो बिल्कुल रन बॉल की स्थिति अब बिल्कुल ये मुमकिन हो पाया सचिन कृपास्कर की शानदार पारी के साथ। मगर केदार नाइक अभी भी डटे हैं, टिके हैं, जमकर बल्लेबाजी करते हुए उनको बखूबी साथ निभाते हुए मयूर तिलवे। और क्या ही बेहतरीन स्कूप शॉट के साथ फाइनल की दिशा में गेंद को भेजा। बिल्कुल AB डिविलियर्स यानी कि 360 डिग्री प्लेयर की याद दिला दी मयूर तिलवे ने। बिल्कुल काफी होनहार बल्लेबाज। तो फिलहाल एक अच्छा कमबैक करना होगा। कपिल वॉरियर्स को इसी बीच बिल्कुल ब्लॉकल में डाली गई गेंद। काफी कमेंटेटर ऐसे कहते हैं कि जड़ में डाली गई थी गेंद, जड़ में, मैं तो कहूंगा पैरों में डाली गई थी, क्योंकि इंसान है, कोई दरख्त नहीं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पोशाक पहने हैं कपिल वॉरियर्स, बिल्कुल JK सुपर सीमेंट। जो कि आप देख सकते हैं मैदान अमूल की गाड़ी तो बिल्कुल आई, उसके बाजू में आप देख सकते हैं कि येलो बिल्डिंग पे लिखा है JK सुपर सीमेंट। इसी भी सुंदर ड्राइव केदार नाइक का, बिल्कुल लाजवाब, कोई मौका नहीं खिलाड़ी को रोक पाए। गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। अंदर गाने के साथ हमारे प्रीतेश नाइक भी झूमते हुए। तो एक शेर प्रीतेश नाइक के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा इस गेंद के बाद। संभल कर फिर से एक बार कट करने का प्रयास, सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 152 रन। तो आप आए हमारे महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। ये देखकर दिल झूमने लगा और सभी के मन जैसे गुनगुनाने लगे। तो बिल्कुल 152 यानी कि आप 20 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। हाफ वॉल पर फिर से एक बार सुंदर ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी तैनात तुषार कुट्टी करके सुंदर फील्डिंग, हालांकि हल्की सी फंबल, मौका दिया बल्लेबाजों को 1 रन को 2 रनों में तब्दील करने का। जब तक थ्रो आया 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 154 रनों पर। तो बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी के साथ और अच्छी पारी के साथ नागेश यूथ बांदोरा की टीम एक जीत की ओर बढ़ती हुई। मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम, कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। और कैचेस जिस प्रकार से ड्रॉप की गई दोनों ही टीमों द्वारा, तो निश्चित तौर पर यह गौरव फिक्र करने की बात है नागेश यूथ और कपिल वॉरियर्स की टीम ओनर के लिए कि काफी तेज गति से गेंद, लगता है थाई पैड से निकली है। गेंद कहीं से भी निकले, चाहे हेलमेट से निकले या आपके नाक से निकले, नाक से खून बह रहा है फिर भी रन बनते हैं, तो नोज बाय नहीं बल्कि लेग बाय ही करार दिया जाएगा।
अब देखिए थाई पैर से निकली है फिर भी लेग बाय। अगर आपकी गेंद जो चेस्ट से निकलती है तो चेस्ट बाय नहीं लेग बाय, नेक बाय नहीं लेग बाय। सिद्धार्थ खानेकर फिर से एक बार कैच का मौका जो कि छूटता रहा। कैच छूटी, मैच छूटी। तो तीसरी कैच जो कि जाती रही। हालांकि दोनों ही टीमों ने 3-3 पॉइंट्स लिए हैं कैच छोड़ने के मामले में। तो इसी बीच इस ओवर की समाप्ति होती हुई यानी कि 17 ओवरों की समाप्ति 155 रन 155 for the loss of 2 wickets. तो 18 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। 17 यानी कि मंडरा रहा है खतरा कपिल वॉरियर्स पर। दूर वाले छोर से फिर से एक बार कप्तान विक्रांत प्रभु गेंदबाजी के घर में 18 गेंदे 17 रन। मगर पूरे दमखम में पूरे लय में बल्लेबाजी करते हुए मयूर तिलवे, उनके साथ केदार नाइक यानी कि गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे। पटकी गेंद, बढ़िया शॉट, 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार और सही पकड़ बनाई और गेंद को भेजा मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 158 पर पहुंचता हुआ तेजी से। थैंक यू डीजे। फिर से एक बार उसी प्रकार का शॉट और नतीजा वही बैक टू बैक बाउंड्रीज बढ़ते हुए मयूर तिलवे बिल्कुल एक सबलाइम फॉर्म में नजर आते हुए स्कोर को पहुंचा 163 रनों पर 163। तो लगातार बढ़िया शॉट्स के साथ लक्ष्य आसान नजर आता हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार पूरी तरह से चुकी अच्छी कमबैक विक्रांत प्रभु की। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे को आए, गेंद को हाफ वॉली में लेकर सीधा शॉट खेलने का प्रयास है, बिल्कुल असफल होता हुआ मयूर तिलवे का। इसको रुका हुआ 163 यानी कि अब बिल्कुल 9 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। संभल कर बिल्कुल कलाइयों के बदले स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है 1 रन के लिए। स्कोर को पहुंचा 164 रन। 14 गेंदे 8 रन। अब बिल्कुल लक्ष्य नजर आता हुआ काफी करीब श्रेय जाता है। सचिन कृपास्कर 69 रनों की पारी खेली। उसके बाद केदार नाइक जो अभी भी डटे हैं 41 पर नाबाद। फिर से एक बार दिशा दी है गली की ओर 1 रन। देखिए बिल्कुल तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही। हालांकि भरत अर्कस जैसे शानदार बल्लेबाज 2 चौके लगाने के बाद पहले ही ओवर में अपनी विकेट दे बैठे। उसके बाद जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है बिल्कुल काबिल तारीफ। बड़ा शॉट, गेंद हवा में खड़ी करके दिए, कैच का मौका आसान सा और इसी बीच मयूर तिलवे आउट होकर बिल्कुल मिस टाइमिंग के साथ एक सिंपल सा कैच दिया है खिलाड़ी के लिए। 18 ओवरों की समाप्ति इसी बीच और 18 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 165 रन।
जैसे ही मैंने देखा तो एक शेर मेरे जहन में आता हुआ, लम्हा लम्हा इंतज़ार किया उस लम्हे के लिए, लम्हा लम्हा इंतज़ार किया उस लम्हे के लिए, जब वो लम्हा आया बस एक लम्हे के लिए, खुदा से गुजारिश है कि काश वो लम्हा फिर से आ जाए बस एक लम्हे के लिए। तो सैयद बदी मैदान पर उतरते हुए, जो कि रमज़ान का महीना और रोज़े की हालत में इस कड़ी धूप में भी बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करते हुए सैयद बदी, पर क्योंकि गेंद खेलने का मौका, बिल्कुल बैकफुट पर खेलने का प्रयास असफल, यानी कि अब 11 गेंदें और 7 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। सिद्धार्थ घानेकर गेंदबाजी के क्रम में काफ़ी लंबे ऊंचे कद के, अगर लंबे ऊंचे गेंदबाजों की बात करें तो अभय कुरुविला इंडिया के लिए खेला करते थे 6 फीट 4 इंच, उसके बाद ईशांत शर्मा 6 फीट 3 इंच, काफ़ी लंबे गेंदबाज हुए हैं हिंदुस्तान के लिए। संभल कर खेलने का प्रयास, 1 रन का मौका जरूर मिलेगा, हल्की सी वहां पर चूक होती हुई विकेट कीपर महेश राव द्वारा, और मौका दिया 1 रन का। 10 गेंदें 6 रन, तो काफी करीबी मामला। हालांकि लीग मैचेस हैं, अगर हार भी गए तो कमबैक कर सकती है टीम कपिल वॉरियर्स। 10 टीमें इस बेहतरीन मुकाबले में संघर्ष करती हुई आपको नजर आएंगी इस खूबसूरत मैदान पर। रॉयल T20 चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है आज के दिन, यानी कि ये पहला मैच। इस बार खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और 1 रन के साथ सैयद बदी ने अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचाया बिल्कुल 166 पर। अब केवल 5 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। नौ गेंदों में ओ लेग स्टंप उखाड़ फेंक दिया है, बिल्कुल सुंदर गेंद के साथ, समझ नहीं पाए केदार नायक। और अब 8 गेंदें 5 रन, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। बाद उनके विकेट का पतन, नए बल्लेबाज प्रजेश। तो इसी बीच मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई भाई का प्यार किस तरह से भाई को खींच लाता है। अमय दामशेकर की बल्लेबाजी देखने के लिए, उनकी मैच देखने के लिए सावरडेम से इतने दूर से आए हैं राजन दामशेकर, और पहली बात उन्होंने आकर मुझे पूछा कि अमय जो स्कोर कितना झाला। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई भाई में जो प्यार है, बिल्कुल ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। अब मुझे इत्तला देते हुए राजन धामसेकर की मेरी अगली मैच है। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि भाई का प्यार खींच लाया है भाई को, काफी दूर से, बड़ी दूर से आए हैं, क्रिकेट का तोहफा लेकर आए हैं राजन धामसेकर, मेरे अच्छे दोस्त। और पता नहीं मेरे छोटे भैया कहाँ हैं। तो बिल्कुल मुकाबला खड़ा होता हो, यानी कि 8 गेंदें 5 रन।
जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की मगर नकारा गया। देखना होगा, इशारा शायद लेग बाय का होगा। ये लेग बाय का इशारा। कई सारे अंपायर की कई सारी स्टाइलिश लेग बाय दिखाने के लिए अगर दामोदर नाइक की बात करूं तो बिल्कुल अपने पैर को सीधा खिसका कर नॉट लेग बाय फ्रॉम द बैट अपने निर्णय को रिवोक करते हुए प्रशांत गडेकर कहा कि बल्ले से 7 गेंदें 4 रन। बिल्कुल आखिरी ओवर तक जाएगी ये मैच, मगर जब तक सैयद बदिउज़्ज़मा जो कि गोवा के सरजमी पर सबसे लंबा शॉट अगर किसी के पल्ले है तो वो है सैयद बदी। ड्राइव किया बिल्कुल कवच की दिशा में, 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया। वन 19 ओवरों की समाप्ति और 3 विकेट के नुकसान पर, माफी चाहूंगा 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाज आउट होने वाले भरत हरकर, उसके बाद सचिन कुरपासकर 69 रनों की पारी, उसके बाद मयूर तिलवे, फिर केदार नाइक और अंपायर ने फिर से कहा ओवर। $69, 172 है लक्ष्य। सैयद बदी स्ट्राइक पर। उल्टस गेंद पर बड़ा शॉट, नो बॉल का इशारा और गेंद गई है 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल 1 ओवर अभी भी था बाकी और नागेश युद्ध बांदोरा ने एक शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा नागेशी युद्ध बांदोरा को और वेल प्लेड कहना चाहूंगा कपिल वॉरियर्स को। यह था नतीजा पहली मैच का, यानी कि इनॉग्रल मैच का। तो चलिए चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर, मगर इसी बीच कहेंगे द म्यूजिक।